Hey, hello everyone. In this video, we are going to cover a chapter of company law, that is share and share capital. So let's start our discussion. Yeah, chapter 2, share and share capital. So as the name of this chapter suggests, share capital. See, वैसे तो कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में डिबेंचर्स या अदर borrowed capital भी होते हैं, but in this chapter we will discuss only about the share capital, means that part of capital which are funded by shares. तो पहले देखते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में व्हाट आर द रेलेवेंट पॉइंट्स. द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट. दीज यूनिट्स आर नोन एज शेयर्स. See, suppose a company have a total amount of share capital of 1 lakh, okay, and this 1 lakh comprises of 10,000 shares of 10 each. एक शेयर्स 10 रुपए का है और टोटल 10,000 शेयर्स है, राइट, एंड द टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल इज 10,000 इंटू 10, दैट इज 1 lakh. सो ये जो एक शेयर है ना 10 रुपए का, दैट इज कॉल्ड यूनिट ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट, और इसे ही हम एक शेयर कहते हैं. ओके, सी, शेयर इज द शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी. ये कंपनी का जो 1 लाख का कैपिटल है ना, शेयर इज अ पार्ट ऑफ दैट. ओके, 1 यूनिट उसका. फिर कहता है शेयर कैपिटल रेफर्स टू द फंड दैट अ कंपनी रेजेज इन एक्सचेंज फॉर इशूइंग एन ओनरशिप इंटरेस्ट इन द कंपनी इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स. दिस मीन्स व्हेन अ कंपनी इशू शेयर्स. ओके, तो शेयर के फॉर्म में शेयर होल्डर के पास कंपनी की ओनरशिप जाती है. वेयर ऑन द अदर हैंड इफ आई टॉक अबाउट द डिवेंचर कैपिटल, तो वेन एवर कंपनी इशू डिवेंचर, तो डिवेंचर होल्डर के पास कंपनी की ओनरशिप नहीं जाती है, राइट. दे आर कंसिडर्ड एज अ क्रेडिटर ऑफ कंपनी टू होम द कंपनी नीड टू पे ओनली इंटरेस्ट एंड द प्रिंसिपल अमाउंट. एक टाइम पे हमें उनका प्रिंसिपल अमाउंट करना है वापस और पीरियडिकली इंटरेस्ट पे करना है डिवेंचर होल्डर को. दे आर नॉट द ओनर ऑफ कंपनी, दे आर सिंपली क्रेडिटर, राइट. बट जब आप शेयर इशू करते हैं तो शेयर होल्डर्स आर द ओनर ऑफ कंपनी, बिकॉज शेयर के फॉर्म में आपने कंपनी का ओनरशिप उनको ट्रांसफर किया है. Suppose a person hold 10% of the total share capital of the company, so we can say that to the extent of 10% that person is owner of the company, right. Then उसके बाद है share capital. Share capital may also describe the number and types of share that compose a company's share structure. There are two general types of share capital which are common stock, that means equity shares, and then preferred stock, that is preference share. Now the next para states the various ways to raise capital like preferential allotment, ESOP, right shares, and issue of shares with differential voting rights. And further it is telling that we are going to cover this lesson in 5 parts, where the first part is meaning and types of share capital, basic bilkul, concept of issue and allotment, issue of security, alteration in share capital, buyback or reduction, and the last one is transferability. Further it is telling that company secretary should be well versed with the technicalities of the subject. Obviously एक CS को एटलीस्ट ये शेयर कैपिटल चैप्टर का तो बिल्कुल बेटर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, बिकॉज फॉर एनी कॉर्पोरेट शेयर कैपिटल इज द बेस काइंड ऑफ थिंग. So let's start with the part A, meaning and types of share capital. If we will go by the simple meaning of capital, so it means the money which a company has raised by issue of its shares. Further, it uses this money to meet its requirement by way of acquiring business premises and stock in trade, which are called the fixed capital and circulating capital respectively. कहने का मतलब कि capital basically means money, right, which is raised by the issuance of share, and further उस पैसे से ही दे acquire their business premises and stock in trade. मतलब बेसिकली हम लोग जो बिजनेस का जो ऑपरेशंस होता है दैट वी यूज टू कैरी बाय द हेल्प ऑफ कैपिटल. फर्दर द फ्रेज लोन और बोरोड कैपिटल इज समटाइम यूज टू मीन मनी बोरोड बाय द कंपनी एंड सिक्योर्ड बाय इशूइंग डिवेंचर्स एंड अदर सिक्योरिटी. दिस हाउएवर इज नॉट द प्रॉपर यूज ऑफ द वर्ड कैपिटल. देखिए यहाँ पे क्या रहा है ना कि जब आप डिवेंचर से पैसा रेज करो या लोन लेकर पैसा रेज करो तो उसे कैपिटल मत बोलो, बिकॉज एनी हाउ आप जब डिवेंचर से पैसा रेज करते हो तो इट्स अ काइंड ऑफ लोन thing only, because you have to repay, and on a periodic basis you have to pay interest also. So it is written here that capital word का proper use borrowed capital kind of thing के लिए सही नहीं है for the purpose of this raising of fund by debentures and all. Further it is telling that in relation to a company limited by shares, the word capital means the share capital only, that is capital in terms of rupees divided into specified number of shares of a fixed amount each. जो मैंने आपको सबसे पहले में एग्जांपल दिया था, that total amount of capital is 1 lakh and the number of shares are 10,000 at the rate of 10 each. For example, share capital of a company is 1 lakh which can be divided, same example दिया हुआ है यहाँ, ठीक है, या फिर 1000 shares of 100 each, okay, whichever is feasible to the company. तो it depends on company that उनको कितना number of shares रखना है and what would be the fixed amount. The next heading is classification of share capital, right, and the first one is authorized or registered capital, issued capital, subscribed capital, called up capital, and paid up share capital. We will see all these classified capital one by one. See, the first one is nominal or registered capital defined under section 2 subsection 8.
such capital as is authorized by the memorandum of a company to be the maximum amount of share capital of the company. Authorized capital is a kind of ceiling limit, okay, that आप जितना ऑथराइज कैपिटल आपका डिसाइडेड है उससे ज़्यादा आप शेयर इशू नहीं कर सकते, एंड इफ़ यू वांट टू इशू यू हैव टू जस्ट इंक्रीज योर ऑथराइज कैपिटल, एंड ऑथराइज कैपिटल इज समथिंग दैट इज मेंशन्ड इन योर मेमोरेंडम ऑफ अ कंपनी कैपिटल क्लॉज में. कैपिटल क्लॉज जो होता है अपने कंपनी के मेमोरेंडम में देयर इट इज़ स्पेसिफाइड कि हमारा ऑथराइज कैपिटल सपोज 10 लाख है, राइट. तो कंपनी जब भी शेयर इशू करेगी तो उसे ये सीलिंग मेंटेन रखना है दैट उनका जो इशूड कैपिटल होगा वो 10 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. एंड इफ़ दे वांट टू इंक्रीज देयर इशूड कैपिटल मोर देन 10 लाख तो उनको ऑथराइज कैपिटल को इंक्रीज करना पड़ेगा बाय फॉलोइंग द स्पेसिफाइड प्रोसीजर अंडर कंपनीज एक्ट. उसके बाद है इशूड कैपिटल डिफाइंड अंडर सेक्शन दिस. सच कैपिटल एज द कंपनी इशूज फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर सब्सक्रिप्शन. इट इज़ दैट पार्ट ऑफ ऑथराइज और नॉमिनल कैपिटल विच द कंपनी इशूज फॉर द टाइम बिंग फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन एंड अलॉटमेंट. देखिए ऑथराइज कैपिटल का पार्ट है इशूड कैपिटल, दैट मीन्स इशूड कैपिटल कैन नेवर बी मोर देन योर ऑथराइज कैपिटल. ओके, ऑथराइज कैपिटल तो एक मैक्सिमम लिमिट है, उसके बाद आप कितना शेयर इशू करते हैं पब्लिक के बीच में फॉर द पर्पस ऑफ सब्सक्रिप्शन दैट्स अ डिफरेंट थिंग, राइट, एंड दैट इज ओनली इशूड कैपिटल. तो दिस इज कंप्यूटेड एट द फेस और नॉमिनल वैल्यू. इशूड कैपिटल वी ऑलवेज कैलकुलेट एट अ फेस और नॉमिनल वैल्यू, राइट. मीन्स अगर प्रीमियम पे इशू हुआ है तो दैट प्रीमियम अमाउंट, जैसे सपोज फेस वैल्यू था 10 एंड यू हैव रेज्ड 12 रुपीज़, तो ऑब्वियसली ये जो 2 रुपये का प्रीमियम है दैट वुड नॉट बी कंसिडर्ड इन द इशूड कैपिटल. हमें फेस वैल्यू पे, नॉमिनल वैल्यू पे कैलकुलेट करना है इशूड कैपिटल. फिर है सब्सक्राइब कैपिटल. सच पार्ट ऑफ द कैपिटल विच इज फॉर द टाइम बिंग सब्सक्राइब बाय द मेंबर्स ऑफ द कंपनी. दैट मीन्स आपका ऑथराइज कैपिटल था 10 लाख, आपने इशू किया 8 लाख इन द पब्लिक, बट दैट इज बिंग सब्सक्राइब्ड बाय ओनली बाय द अमाउंट ऑफ 7 लाख. ओके, मीन्स सब्सक्राइब कैपिटल जो है वो इशूड कैपिटल से कम हो सकता है बिकॉज आपने जितना इशू किया ऐसा नहीं है कि दैट वुड बी फुली सब्सक्राइब. कभी कभी अंडर सब्सक्रिप्शन भी होता है, राइट. एंड दैट्स वाई इट इज रिटन हियर कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज अ पोर्शन ऑफ द इशूड कैपिटल एट अ फेस वैल्यू विच हैज़ बीन सब्सक्राइब्ड फॉर और टेकन अप बाय द सब्सक्राइबर ऑफ द शेयर्स इन द कंपनी. ये सब्सक्राइबर्स ऑफ द शेयर्स इन पब्लिक, या कह सकते हैं अगर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हो रहा है तो जिन्होंने सब्सक्राइब किया है शेयर, मीन जिन्होंने अप्लाई किया है फॉर द शेयर. तो ये जो सब्सक्राइब कैपिटल होते हैं ये इशूड कैपिटल का ही एक पोर्शन होता है. डैट मीन्स सब्सक्राइब कैपिटल इशूड कैपिटल से कभी ज़्यादा नहीं होगा. ओके, मीन्स अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ तो इट कैन गो, बट स्टिल जनरली इशूड कैपिटल से कम रहता है. तो इसीलिए इट इज़ दैट पोर्शन ऑफ इशूड कैपिटल एट फेस वैल्यू विच हैज़ बीन सब्सक्राइब फॉर और टेकन अप बाय द सब्सक्राइबर ऑफ शेयर इन द कंपनी. जितने भी एप्लीकेंट थे वो लोग जितने शेयर को सब्सक्राइब किए दैट इज कॉल्ड सब्सक्राइब कैपिटल. इट इज़ क्लियर दैट द इंटायर इशूड कैपिटल मे और मे नॉट बी सब्सक्राइब. सेम वे दैट आई टोल्ड कि आप जितना इशू करते हैं कैपिटल वो मे और मे नॉट बी सब्सक्राइब, राइट. ऐसा नहीं है कि आपने अगर 8 लाख का शेयर इशू किया है तो वो 8 का 8 लाख वो आपका सब्सक्राइब हो जाए. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पेज एंड दिस कॉल्ड अप कैपिटल. सो सपोज इफ आउट ऑफ 10 रुपीज़ वी हैव कॉल्ड ओनली 6 रुपीज़ टिल नाउ, तो दैट वुड बी कॉल्ड द कॉल्ड अप कैपिटल. ठीक है. फिर आते हैं पेड अप शेयर कैपिटल पे 2 सबसेक्शन 64. Such aggregate amount of money credited as paid up as is equivalent to the amount received as paid up in respect of shares issued and also include any amount credited as paid up in respect of shares of the company but does not include any other amount received in respect of such shares by whatever name called. देखिए बेसिकली इसका ये मतलब है ना कि जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि 10 रुपये के शेयर्स में से मैंने 6 को कॉल्ड अप किया है और सपोज उन्होंने अभी 4 ही सेंड किया है ना, मीन्स आपके अकाउंट में जितना मनी क्रेडिट हुआ एक्चुअली क्रेडिट, राइट. आपने 10 का शेयर इशू किया है, आपने 8 कॉल किया है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट वॉट एवर इज क्रेडिटेड इन योर अकाउंट दैट वुड बी कॉल्ड पेड अप कैपिटल, कि इतना तो पेड हो गया है. दैट्स वाई इट इज रिटन हियर कि सच एग्रीगेट अमाउंट ऑफ मनी क्रेडिटेड एज पेड अप एज इज इक्विवेलेंट टू द अमाउंट रिसीव्ड एज पेड अप इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स इशूड. ओके, और इसमें क्या इंक्लूड नहीं होगा बट डज नॉट इंक्लूड एनी अदर अमाउंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच शेयर्स. मीन्स एज अ पेड अप के अकॉर्डिंग के अलावा किसी भी और तरीके से आपको अमाउंट अगर रिसीव होता है तो दैट वुड नॉट बी इंक्लूडेड इन अ पेड अप कैपिटल. ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट शेयर इफ द अमाउंट इज गेट रिसीव्ड एंड क्रेडिटेड दैट वुड बी कॉल्ड पेड अप शेयर capital. So these were all the classification of capital. Now see what is equity and preference share capital. This will be discussed later in detail, but right now we are only referring to the explanation to section 43. See, equity share capital with reference to any company limited by shares, मतलब हर वो कंपनी जो कि लिमिटेड बाय शेयर्स है, मीन्स ऑल शेयर कैपिटल विच इज नॉट अ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल.
ये जो इक्विटी शेयर कैपिटल का डेफिनेशन है, इट इज़ एक्सक्लूसिव काइंड ऑफ थिंग, मीन्स एक्सक्लूड किया है इस डेफिनेशन से दैट जो भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है दैट इज़ इक्विटी शेयर कैपिटल। सो अब हम लोग देखेंगे कि ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या है, बिकॉज देन ओनली वी विल कम टू नो दैट व्हाट इज equity share capital, because anything other than preference is equity. See, preference share capital with reference to any company limited by shares means that part of the issued share capital of the company which carries or would carry a preferential right with respect to, see, preference share capital के नाम से ही पता चलता है कि एक ऐसा शेयर कैपिटल है जिसको प्रेफरेंस मिला है। ओके, तो इस 2 पॉइंट पे है, इसमें कहता है कि पहले प्रेफरेंशियल राइट विद रिस्पेक्ट टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड इधर एज अ फिक्स्ड अमाउंट और एन अमाउंट कैलकुलेटेड एट अ फिक्स रेट विच में इधर बी फ्री ऑफ और सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स। कहता है कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो होंगे ना उनको पेमेंट ऑफ डिविडेंड फिक्स्ड अमाउंट का मिलेगा ही, या तो फिक्स्ड अमाउंट का या तो फिक्स्ड रेट का। वेरएज आप अगर इक्विटी शेयर्स की बात करोगे तो डिविडेंड देना या नहीं देना इट इज़ ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अगर वो डिसाइड करेंगे, उनका मन होगा तो मीन्स बेस्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल दे कैन ऑल्सो मीन्स देयर कुड बी अ सिचुएशन वेयर दे विल नॉट पे डिविडेंड, बट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को देना ही देना है, राइट। उसके बाद है रिपेमेंट इन द केस ऑफ वाइंडिंग अप और रिपेमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल पेड अप और डीम्ड टू हैव बीन पेड अप whether or not there is preferential right to the payment of any fixed premium or premium on any fixed scale specified in the memorandum or article of the company. Basically this mean to say that अगर मान लीजिए कि 100 रुपये का एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था, ओके, और एक प्रेफरेंस शेयर किसी आदमी के पास है, तो उस इंसान को फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड तो मिलेगा ही मिलेगा, फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड तो मिलेगा ही मिलेगा, वो 100 रुपये का भी रिपेमेंट एक दिन जाकर होगा, ओके। एंड द सिचुएशन विच लीड टू रिपेमेंट ऑफ कैपिटल इन केस ऑफ शेयर्स इज वाइंडिंग अप, अगर वाइंडिंग अप हो रहा हो तो, या फिर रिपेमेंट ऑफ कैपिटल हो रहा हो तो, ओके। सो जब वाइंडिंग अप या रिपेमेंट ऑफ कैपिटल हो तो उस टाइम में भी जब रिपेमेंट ऑफ कैपिटल होगा ना तो प्रेफरेंस शेयर्स वालों को मीन्स दे विल बी ट्रीटेड प्रेफरेंशियली, उनको इक्विटी शेयर्स वालों से पहले पे किया जाएगा, राइट। और उसके बाद जो भी रेसिडुअल बचता है दैट वुड बी पेड टू द इक्विटी शेयर्स वाले। So basically if we will try to understand this preference share capital, so it is nothing but it is a part of issued share capital that have preferential right with respect to payment of dividend and repayment of capital, okay। means payment of dividend के केस में उनका अमाउंट फिक्स्ड है या तो कोई फिक्स्ड रेट है जिससे उनको पेमेंट हो रहा है, प्लस व्हेन इट कम्स टू द रिपेमेंट ऑफ कैपिटल उनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाएगा और इक्विटी शेयर्स वालों से तो पहले ही पेमेंट किया जाएगा। Okay, the next heading is publication of authorized, subscribed and paid up capital. See, section 60 of the act states that where any notice, advertisement or other official publication, billhead, letter paper of a company contains a statement of the amount of authorized capital of the company. See, अगर any of the billhead or letter paper, advertisement or any notice of the company contains the amount of authorized capital, तो such notice, advertisement or other official publication, letter, bill head shall also contain a statement in an equally prominent position in an equally conspicuous character of the amount of the capital which has been subscribed and the amount paid up। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर किसी भी डॉक्यूमेंट में ऑथराइज्ड पेड अप कैपिटल लिखा हुआ है ना तो सेम वे में, सेम कैरेक्टर में, इन अ सेम प्रोमिनेंट पोजीशन यू ऑल्सो हैव टू स्पेसिफाई दैट हाउ मच ऑफ द कैपिटल हैज बीन सब्सक्राइब्ड एंड हाउ मच इज पेड अप। In case of failure in complying with the aforementioned requirement, company shall be liable to pay a penalty of 10,000 rupees and every officer of the company who is in default shall be liable to pay a penalty of 5,000 rupees for each default, right। बेसिकली कंपनी के जिस भी लेटर हेड पे, नोटिस पे, किसी एडवर्टीजमेंट पे अगर ऑथराइज कैपिटल के बारे में लिखा हुआ है तो सेम मैनर में वी हैव टू स्पेसिफाई सब्सक्राइब्ड as well as amount paid up also। Further, it is telling that section 284 defines the word share and it means the share in the share capital of the company and includes stock। Very simple। Then it is nature of share। A share is the right to a specified amount of share capital of a company carrying with it certain rights and liability while the company is a going concern and in its winding up। This means that you have right to a specified amount because कोई भी शेयर होता है वो एक फिक्स्ड अमाउंट का होता है, right। So you have right to the extent of that amount। Further, it carry certain rights like voting rights रहते हैं and few liabilities also while the company is a going concern and it's winding up। Further, the second nature of share is a share is the right to participate in the profit made by a company while it is a going concern। Means you have right, if you have share then you have right that you can participate in the profit made by a company। बट हाँ, ये बिल्कुल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का डिस्क्रिप्शन होता है दैट वेदर टू डिक्लेयर डिविडेंड और नॉट।
If they will declare the dividend, only in that case you will be eligible for the dividend and all, or you are eligible to share profit only if they want. फिर section 44 of the Companies Act 13 provides that a share or debenture or other interest of any member in a company is a movable property transferable in the manner provided by the articles of a company. This means by virtue of section 44 it is quite clear that company का share या debenture है ना वो movable property है, okay, and it is transferable in the manner provided by the articles of the company, and that is the reason only why one shareholder sell their shares to the another, right? तो जो share और debenture होते हैं वो बिल्कुल transferable होते हैं. Further, in India, a share is regarded as goods. According to Sale of Goods Act, goods means any kind of movable property other than actionable claim and money and include stock and share. आप अगर सेल ऑफ गुड्स एक्ट में गुड्स का डेफिनेशन देखोगे तो उसमें इंक्लूड किया गया है शेयर्स को. According to Section 45 of Companies Act 13, every share in a company having a share capital shall be distinguished by its distinctive number, but this provision shall not apply to a share held by a person whose name is entered as the holder of beneficial interest in such shares in a record of depository. Section 45 provides that company का जितना भी शेयर है ना तो वो नंबर वाइज डिफरेंट रहना चाहिए. जैसे हर एक करेंसी का नंबर डिफरेंट रहता है ना, सेम वे. बट आजकल क्या होता है कि मोस्टली शेयर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है डीमैट अकाउंट में. सो इन दैट केस दिस नंबरिंग का रिक्वायरमेंट नहीं है. ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट इज टेलिंग दैट सेक्शन 45 एवरी शेयर इन अ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल शैल बी डिस्टिंग्विश्ड बाय इट्स डिस्टिंक्टिव नंबर, बट दिस प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई टू अ शेयर हेल्ड बाय अ पर्सन इन द रिकॉर्ड्स ऑफ डिपॉजिटरी. ओके, तो डिपॉजिटरी के ही पास शेयर डीमैट फॉर्म में रहता है, तो डीमैट फॉर्म वाले शेयर पे ये प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं है. एंड मोस्टली अब आजकल शेयर डीमैट फॉर्म में ही रहता है. काफ़ी कम ही होगा जहाँ यू विल फाइंड दिस फिजिकल शेयर एंड शेयर सर्टिफिकेट एंड ऑल. ओके, फॉर द टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल अगेन वी विल सी दोज ओनली. जो मेजर हेड्स है दैट इज प्रेफरेंस एंड इक्विटी शेयर कैपिटल. इक्विटी शेयर कैपिटल में आते हैं वोटिंग राइट्स के साथ एंड विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स एज टू डिविडेंड एंड वोटिंग और अदरवाइज. देखिए पहले वाला तो है कि उसमें वोटिंग राइट है, इसमें डिफरेंशियल राइट एज टू डिविडेंड और वोटिंग और अदरवाइज. मीन्स थोड़ा सा इसका जो राइट होगा वो डिफरेंट होगा एज पर द ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर. अगर हम ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर के वोटिंग राइट से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे कुछ तो अलग राइट होगा. ओके, उसके बाद है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. पहला है क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल, रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मीन्स अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल विद अ प्रेफरेंशियल राइट विद रिस्पेक्ट टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड. वी हैव ऑलरेडी रेड. ठीक है, एंड एज रिगार्ड द कैपिटल इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप और अदर अरेंजमेंट टू रिपेमेंट ऑफ कैपिटल देयर मस्ट बी प्रेफरेंशियल राइट टू बी रीपेड द अमाउंट ऑफ कैपिटल पेड अपॉन सच शेयर. ओके, देखिए उनके पास कुछ नहीं, बस प्रेफरेंशियल राइट होता है टू बी रीपेड द अमाउंट ऑफ कैपिटल. अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मे और मे नॉट कैरी सच अदर राइट एज स्पेसिफाइड. मतलब मोस्टली उनके पास ना ये दो ही राइट होता है कि उनको पेमेंट ऑफ डिविडेंड जो होगा इट मस्ट कैरी अ प्रेफरेंशियल राइट टू फिक्स्ड अमाउंट होगा या तो कोई फिक्स्ड रेट होगा. और ये होता है दैट एज रिगार्ड द कैपिटल उनको रीपे होने का प्रेफरेंशियल राइट है. उसके बाद जो हम लोगों ने यहाँ पे फर्दर सब काइंड्स देखा, द फर्स्ट वॉज क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स. सी द वर्ड क्यूमुलेटिव इटसेल्फ मीन्स दैट यू कैन से जमा होना, ओके, या एक्यूमुलेट होना. तो इट इज टेलिंग दैट द डिविडेंड्स आर एक्यूमुलेटेड एंड देयरफॉर पेड बिफोर एनीथिंग पेड टू इक्विटी शेयर्स. अगर ऐसा होता है कि आप किसी एक ईयर में यू आर नॉट एबल टू पे डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो उनका वो जो अनपेड डिविडेंड था ना वो क्यूमुलेट होते जाता है. मतलब आपने अगर 2 साल आपने नहीं पे किया और आप अगर तीसरा साल पे करना चाह रहे हैं डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इन दैट केस यू नीड टू पे फॉर ऑल दोज 3 ईयर्स. ऐसा नहीं होगा कि आपने अगर 1 साल का पे नहीं किया तो द डिविडेंड फॉर दैट ईयर विल लैप्स. ओके, इट विल नेवर बी लैप्स. वो क्यूमुलेट होते जाएगा एंड एट द एंड you need to pay that before paying anything to the equity share. For the non-cumulative, if a company does not pay dividend in current year, claim of preference shareholder is lost to that extent. Cumulative में वो lapse नहीं होता है, non-cumulative में वो lapse हो जाता है. Okay, that means आपने अगर 1 year पे नहीं किया तो second year आपको सिर्फ second year का पे करना है, not of that 1 year of which the dividend was unpaid. उसके बाद है कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर. कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर बेसिकली मीन्स अ प्रेफरेंस शेयर विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर एट सम अग्रीड टर्म्स एंड कंडीशन, whereas non-convertible is something which do not have option to convert but has all the characteristic of preference shares. मीन्स नॉन कन्वर्टेबल शेयर सिर्फ इतना है कि वो कभी ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं होगा, बाकी वो है प्रेफरेंस शेयर ही. फिर अब पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग.
पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास एक एडिशनल बेनिफिट होता है और पार्टिसिपेटिंग इन द सरप्लस प्रॉफिट और सरप्लस एसेट ऑफ कंपनी अपार्ट फ्रॉम द प्रेफरेंशियल डिविडेंड। उन लोगों को क्या होता है ना कि अगर इक्विटी शेयर्स को भी पे करने के बाद कुछ सरप्लस एसेट या प्रॉफिट बचते हैं तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स वाले का राइट बनता है उस पर। ओके, वेर एज नॉन पार्टिसिपेटिंग जो है दे आर नॉट इंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन द सरप्लस प्रॉफिट और सरप्लस एसेट ऑफ द कंपनी, दे आर इंटाइटल्ड टू ओनली अ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। And the last kind of preference share capital is redeemable and non-redeemable. See, redeemable preference shares जो होता है ना उनका कुछ मेच्योरिटी डेट होता है, दैट उस डेट को आपका कैपिटल को हम लोग रीपे कर देंगे। दैट मीन्स आपको डिविडेंड तो हम पे करेंगे ही और उस टेन्योर के खत्म होने के बाद एज अग्रीड वी विल पे योर कैपिटल ऑल्सो। फाइन, सो इट इज रिटन हियर दैट redeemable preference share has a maturity date on which date the company will repay the capital amount to the preference share holders. अब कहता है पेइंग बैक ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड द रिडेम्पशन। अब ये जो हम लोग उनको कैपिटल पे कर देते हैं ना, इसको इस प्रोसेस को ही भी से रिडेम्पशन। तो एज पर सेक्शन 55 प्रेफरेंस शेयर शैल बी रिडीम्ड विद इन अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 20 ईयर्स। सेक्शन 55 में एक लिमिट है कि आपको प्रेफरेंस शेयर्स को 20 साल से ज़्यादा नहीं रखना है, आपको 20 साल के अंदर अंदर उसे रिडीम कर ही देना है। ओके, हाउएवर जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज है उनके लिए 20 साल का लिमिट 30 साल है, दैट 30 साल तक के वो प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकते हैं बट नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। फर्दर जो इरिडेमेबल है वो मतलब इसका अगर मैं बेसिक मीनिंग बोलूँ तो जिसका कोई भी मैच्योरिटी डेट नहीं है, वो उसका कैपिटल का रिपेमेंट सिर्फ टाइम मतलब वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी के टाइम ही होगा। बट सेक्शन 55 स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्ट करता है। हाउएवर एज पर सेक्शन 55 ऑफ द कंपनीज एक्ट नो कंपनी कैन इशू इरिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, उनको वो 20 ईयर्स के अंदर अंदर उनको रिडीम करना ही पड़ेगा और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है तो 30 ईयर्स। राइट, एक मीनिंग कहने के लिए इरिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इज देयर बट एज पर सेक्शन 55 नो कंपनी कैन इशू इरिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। मतलब इफ़ यू आर इशूइंग द प्रेफरेंस शेयर्स तो यू हैव टू जस्ट स्पेसिफाई देयर लाइफ कि आप ये 20 साल का हो या 20 साल से कम का हो या फिर 30 साल का हो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के केस में। बट यू कांट इशू लाइक ये प्रेफरेंस शेयर आज इशू हो गया तो कभी भी रिडीम ही नहीं होगा until and unless there would be situation of winding up. Okay, आते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल पे। ऑल शेयर कैपिटल नॉट फॉलिंग विद इन द अबव डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल इज इक्विटी शेयर कैपिटल। हम लोगों ने डेफिनेशन में भी देखा था कि इक्विटी शेयर कैपिटल साफ कहता है कि एनी शेयर कैपिटल अदर देन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल विच हैज नो गारंटीड अमाउंट ऑफ डिविडेंड बट कैरीज वोटिंग राइट्स। लाइक आई टोल्ड यू दैट डिविडेंड कभी भी गारंटीड नहीं होता इक्विटी शेयर्स के केस में। इट इज़ ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिस्क्रिप्शन, उनको मन होगा तो देंगे, नहीं होगा तो दे विल नॉट डिक्लेयर डिविडेंड। राइट, बट हाँ वोटिंग राइट्स होते हैं इक्विटी शेयर्स में। Now here are some illustrations of right given that are attached to the equity shareholders. See, they have right to vote, they have right to receive dividends, but subject to condition that the same has been declared by board of directors. They have right to transfer freely without any restriction. That means एक shareholder जो है वो दूसरे किसी person को share sale कर सकते हैं, right? And the equity share capital is divided into shares with equal voting right या फिर differential voting right as to the dividend voting right or otherwise. See, इक्विटी कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज कॉमन स्टॉक। हम लोग इक्विटी कैपिटल को कॉमन स्टॉक भी कहते हैं या कॉमन शेयर कैपिटल भी कहते हैं दैट रिप्रेजेंट ओनरशिप इन अ कंपनी। ओके, कॉमन शेयर कैपिटल इज जनरली डिवाइडेड इनटू यूनिट्स नोन एज शेयर्स। सेम थिंग है, इक्विटी कैपिटल का फिक्स्ड यूनिट होता है और उसे हम शेयर्स कहते हैं। दीज यूनिट होल्डर्स आर कॉल्ड इक्विटी शेयर होल्डर। जिनके पास भी शेयर्स होता है, अगर आपके पास एक शेयर भी है तो यू आर इक्विटी शेयर होल्डर। ओके, दे आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी एंड पॉलिसी मेकर्स ऑफ द कंपनी। सी, as it is written here that the common share capital, that means equity share capital, represent ownership in a company. Okay, वो आपको कंपनी का मालिक बना देता है। That's why the shareholders are the real owners of the company and policy makers of the company. Because see, बहुत तरह के resolution ऐसे that require the assent of shareholders, right? तो shareholders के assent के बिना, shareholders के approval के बिना बहुत सारे ऐसे policies है जो कि पास नहीं होते हैं। So that's why it is written here कि policy they are the policy makers of the company. However, they do not have access to the day-to-day affairs of the company, जो कि day-to-day affairs जो है वो management करते हैं। Further, they appoint the representatives called board of directors to look after the affairs of the company. See, same thing which I told कि board of directors जो होते हैं ना वो shareholders के representative होते हैं and they are appointed to look into and manage the affairs of the company. Equity shareholders are entitled to vote on resolutions of the company, get a return by way of dividend if declared. See, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि इक्विटी शेयर होल्डर को रिटर्न मिलेगा बाय वे ऑफ डिविडेंड इफ डिक्लेयर्ड। ओके, एंड टेक पार्ट इन सरप्लस इन असेट ऑफ द कंपनी एट टाइम ऑफ वाइंडिंग अप।
वाइंडिंग अप के टाइम में अगर कुछ एसेट बच जाता है तो इक्विटी शेयर होल्डर विल टेक पार्ट। ओके, फर्दर कोई डिविडेंड अगर डिक्लेयर होगा तो इक्विटी शेयर्स वालों को मिलेगा। और एक बात दैट उनको उनके पास वोटिंग राइट होता है टू वोट ऑन द रिजोल्यूशन ऑफ द कंपनी टू ऑल दोज एरिया वेयर द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स आर रिक्वायर्ड। Further, equity shareholders are the owner of company, but they don't have control over the day-to-day affairs. उस affairs को manage करने के लिए they appoint their representative called the board of directors. So this was about part A, जहाँ हम लोगों ने basic देखा, okay, कि equity share capital क्या होती है, preference share capital क्या होता है, कितने kinds of preference share capital होते हैं, and what are the difference basically between these two kind of share capital. Now we will proceed with the part B, that is concept of issue and allotment. Starting with the brief overview, financial markets have an important relationship with the economic development. See, ये जो अपने स्टॉक एक्सचेंज में इतने फंड्स मोबिलाइज हो रहे हैं दैट हैव डायरेक्टली impacted our economic development, okay, and that too in a positive way. Actually, see, a company decide to issue security for a different reason. The main reason being raising capital to meet its financial requirement. एक कंपनी सिक्योरिटीज क्यों इशू करता है? बिकॉज उससे उसे फंड रिसीव होगा एंड दे कैन मीट देयर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, मे बी फॉर स्टार्टिंग अ वेंचर, मीन्स इफ दे हैव सम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, कोई अगर नए प्रोजेक्ट में या किसी नए वेंचर में अगर उनको इन्वेस्ट करना है, इन दैट केस ऑल्सो कंपनी want to go public. The company also raise fund for repaying debts, expansion and diversification. See, this actually reflects indulgence of enormous investor wealth for the sublime reason of economic development. जब इतने लोग इतने बड़े बड़े कंपनी में पैसा लगा रहे हैं तो वो कंपनी का वर्क स्ट्रांग हो रहा है, राइट। एंड आपके अगर कंट्री का अच्छे अच्छे कॉर्पोरेट अगर प्रॉपरली काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली योर इकोनॉमिक डेवलपमेंट विल ग्रो। लाइक रिलायंस से इंडिया को कितना सपोर्ट है, ओके। आज अगर रिलायंस कंपनी में किसी तरह का प्रॉब्लम होता है ना, या रिलायंस का अगर शेयर डाउन होता है तो आप अगर ध्यान दोगे दैट इट विल इम्पैक्ट योर स्टॉक मार्केट ऑल्सो, राइट। तो इसीलिए आप जब एक कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो समवेयर यू आर कंट्रीब्यूटिंग दैट कंपनी टू ग्रो, और जब कॉर्पोरेट ग्रो होगा तो ऑब्वियसली द इकोनॉमिक डेवलपमेंट विल राइज। Further, this economic dependence of the corporate sector is compelling rationale for an orderly regulated environment that boosts investor confidence and assures conformity with prescribed norms. This means जब रिटेल इन्वेस्टर्स का इतना पैसा इन्वॉल्व होगा ना तो फिर यहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि एक ऑर्डरली रेगुलेटेड इन्वायरमेंट हो, ओके, जो कि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बूस्ट करे दैट उनके साथ चीट नहीं होगा। इफ़ दे आर इन्वेस्टिंग इन सम कंपनी तो दे विल नॉट एक्सपेक्ट लाइक दैट उनके साथ कुछ गलत हो जाएगा, राइट। तो इसके लिए एक रेगुलेटेड इन्वायरमेंट होना चाहिए एंड एक एश्योरेंस होना चाहिए दैट ऑल द नॉर्म्स आर बीइंग प्रिस्क्राइब्ड। फर्दर, इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग कंड्यूसिव ownership base and wide capacities to create an impact on the national economy. When an investor buys security, he is enabling the company to carry on its business using those funds. सिंपल सी बात है कि जब हम एक शेयर खरीदते हैं, ओके, तो व्हाट आई एम टेलिंग दैट टेक माई मनी, गिव मी शेयर्स एंड कैरी ऑन योर बिजनेस। Moving to the next page, and it is given that in India, a company planning to issue security shall abide by a relevant provision. See, मैंने बोला ना कि जब एक इन्वेस्टर अपना पैसा लगा रहा है कंपनी में एंड देर आर लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स, मतलब मोर देन करोड्स, राइट। रिटेल इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा है मार्केट में, और वो अगर किसी कंपनी के शेयर में पैसा लगा रहे हैं ना तो एक स्ट्रिक्ट लॉ होना चाहिए ताकि उन मीन्स दैट विल जस्ट बूस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द इन्वेस्टर दैट येस इफ आई एम इन्वेस्टिंग देयर आर प्रॉपर रूल्स एंड दैट रूल्स आर बीइंग कंप्लाइड विद। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे दिया हुआ है कि इन इंडिया ए कंपनी प्लानिंग टू इशू सिक्योरिटी, जब एक कंपनी सिक्योरिटी इशू करना चाहती है ना तो उनको रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ दीज लॉ दे नीड टू कंप्लाई। सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स, कंपनीज एक्ट 13 एंड सेबी एंड रूल्स एंड रेगुलेशन मेड देयर अंडर, लाइक लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है, LODR रिक्वायरमेंट एंड ICDR है, इशू ऑफ कैपिटल एंड disclosure requirement, depository act है, depository regulation, and there are a lot of laws also that a company which want to issue security need to comply with. Okay, so the next heading is overview of the issue of security. Primarily, issue can be classified as public issue, right, or preferential issue, also known as private placement. While public and right issue involve a detailed procedure, private placement और preferential issue are relatively simple. देखिए, public और right issue का basically मतलब है ना, when you are raising fund from public, that is called public issue. Okay, means किसी specified person को आपने ये पहले से डिसाइड नहीं किया है that to whom you will allot the share. आप एक पब्लिक को देख रहे हैं, पूरा वाइड रेंज देख रहे हैं पब्लिक का, दैट आई एम गोइंग टू पब्लिक एंड ऑफरिंग माई शेयर्स, जो भी सब्सक्राइब करेंगे आई विल सी एंड आई विल अलॉट देम, राइट, दैट इज पब्लिक इशू। राइट
इशू में क्या होता है दैट यू आर गिविंग राइट टू योर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर दैट बेसिस योर प्रेजेंट शेयर होल्डिंग यू कैन सब्सक्राइब मोर शेयर्स। ओके, मतलब कुछ ऐसा होता है कि राइट इशू के केस में एक रेशियो फिक्स होता है दैट जिनके पास एक शेयर है ना, तो फॉर दैट वन शेयर ही कैन टेक 2 मोर शेयर। ओके, तो उस केस में क्या होगा दैट अंडर दैट राइट इशू वेयर द रेशियो इज 2:1, किसी के पास अगर 100 शेयर होगा ना, तो ही हैव राइट टू सब्सक्राइब मोर टू 100 शेयर्स, तो दैट इज कॉल्ड राइट शेयर। तो यहाँ पे कह रहा है कि पब्लिक इशू और राइट इशू में तो डिटेल प्रोसीजर होते हैं, बट प्राइवेट प्लेसमेंट और प्रेफरेंशियल इशूज़ में रिलेटिवली सिंपल होते हैं। क्यों सिंपल होते हैं? क्योंकि प्राइवेट प्लेसमेंट में ऑलरेडी डिसाइडेड होता है दैट टू होम वी विल अलॉट द शेयर, और प्रेफरेंशियल इशूज़ में भी वी जस्ट गिव प्रेफरेंस टू द पर्सन टू होम वी वांट टू अलॉट द शेयर। ओके, तो बेसिकली इसमें जो टारगेटेड अलॉटीज़ है वो ऑलरेडी फिक्स्ड होते हैं, तो इनका जो प्रोसेस होता है वो सिंपलर होता है। बट वेयर एज इन केस ऑफ पब्लिक इशू और राइट इशू देर आर सम डिटेल प्रोसीजर। बेसिस दिस ओनली अ चार्ट इज गिवन, इसको जल्दी जल्दी देखेंगे। देखिए, इशू ऑफ सिक्योरिटी कैसे हो सकता है? पब्लिक ऑफर। ओके, अब पब्लिक ऑफर में मीन्स आप जब पब्लिक को ऑफर करते हैं ना, तो 2 चीज़ें, एक तो पहला है इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर, इनिशियल वर्ड का मतलब क्या होता है? सबसे पहला। ओके, तो आपने अगर अब तक अपना कोई भी सिक्योरिटी को लिस्ट नहीं कराया है और आप पहली बार पब्लिक के पास जा रहे हो फॉर द पर्पस ऑफ फंड, तो दैट इज़ कॉल्ड इनिशियल पब्लिक ऑफर। और फर्दर पब्लिक ऑफर क्या होता है? आपको समझ आ रहा होगा। फर्दर मीन्स आपने ऑलरेडी पहले शेयर इशू कर रखा है, पहले आपका शेयर ऑलरेडी लिस्टेड है। ओके, एंड यू आर इन रिक्वायरमेंट ऑफ सम फर्दर फंड्स, आपको और फंड्स की ज़रूरत है, तो आप जब दोबारा आते हैं ना पब्लिक के पास, तो दैट इज़ कॉल्ड, वन सेकेंड, फर्दर पब्लिक ऑफर। ओके, अब इनिशियल पब्लिक ऑफर हो मीन्स आईपीओ, या फर्दर पब्लिक ऑफर हो एफपीओ, ये भी 2 तरह के होते हैं। एक तो होते हैं फ्रेश इशू और एक होते हैं ऑफर फॉर सेल। फ्रेश इशू मतलब होता है कि यू आर इंक्रीजिंग योर शेयर कैपिटल। ओके, आप न्यू शेयर इशू कर रहे हैं। और ऑफर फॉर सेल होता है दैट आपके एग्जिस्टिंग शेयर ही सेल हो रहे हैं। ओके, मीन्स पहले से आपके किसी शेयर होल्डर के पास था, आप उस शेयर को ही मार्केट में ला रहे हैं, आप कोई फ्रेश इशू नहीं कर रहे हैं, राइट। सो ये था पब्लिक ऑफर। और उसके बाद राइट इशू है। राइट इशू मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। बोनस इशू है। बोनस इशू भी सेम होता है दैट एक रेशियो किया जाएगा डिसाइड, एंड बेसिस दैट रेशियो द शेयर विल गेट अलॉटेड। और उसके बाद है प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट इज जस्ट अपोजिट ऑफ पब्लिक इशू। पब्लिक इशू में हम लोग पब्लिक के पास जाते हैं, द अलॉटीज आर नॉट प्री डिटरमाइंड, बट प्राइवेट प्लेसमेंट में जो अलॉटीज होते हैं, अलॉटीज मीन्स जिसको हम लोग अलॉटमेंट करने वाले हैं, वो प्री डिटरमाइंड होते हैं। दैट इज मतलब इस फिक्स्ड ग्रुप कहीं पर्सन को वी हैव टू अलॉट द शेयर। ओके, दैट्स वाई इसका प्रोसीजर भी जो है वो सिंपल होता है। सो नेक्स्ट इज द प्रोविजंस रिलेटेड टू द पब्लिक ऑफर एंड प्राइवेट प्लेसमेंट। See, Chapter 3 of the Companies Act 13 deals with prospectus and allotment of security. This chapter is divided into 2 parts. Part 1 deal करता है public offer से, and Part 2 deals with the private placement. Section 23 of the Companies Act provides that a company, whether public or private, may issue security. Section 23 कहता है कि public company हो या private company हो, security वो issue कर सकती है, right? अब Section 23 subsection 1 says that a public company may issue security to public through prospectus, that is public offer, by complying with the provision of part 1, and through private placement by complying with provision of part 2 of chapter 3 of the act. Further, through a right issue, bonus issue in accordance with the provision of this act, and in case of listed company or a company which intends to get its security listed, also with the provision of SEBI act and rules and regulation made thereunder. That means ICDR regulation, LODR regulation and all. तो इसमें क्या फोकस करने का है दैट ये सेक्शन 23 सब सेक्शन 1 सिर्फ पब्लिक कंपनी के लिए है। ओके, पब्लिक कंपनी है तो वो पब्लिक से पैसे रेज कर सकती है थ्रू प्रोस्पेक्टस एंड कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ पार्ट 1 ऑफ चैप्टर 3, या थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट। ओके, बाय कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 3, या वो राइट इशू ला सकती है, बोनस इशू ला सकती है इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। बट वो अगर लिस्टेड होगी या अगर ऐसा उनका इंटेंशन होगा टू गेट इट सिक्योरिटी लिस्टेड, तो उनको सेबी एक्ट एज वेल एज रेगुलेशन से भी कंप्लाई करना होगा। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट पब्लिक कंपनी। नाउ फॉर अ प्राइवेट कंपनी, सेक्शन 23 सब सेक्शन 2 प्रोवाइड्स दैट अ प्राइवेट कंपनी में इशू सिक्योरिटी बाय वे ऑफ राइट इशू, बोनस इशू इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, या थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट बाय कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 3 ऑफ द एक्ट। So private company can come up with right issue, bonus issue or through private placement. Okay, ये वाला जो कंडीशन है ना, ये इसमें मिसिंग है, दैट इज टू पब्लिक थ्रू
प्रोस्पेक्टस। पब्लिक के पास प्राइवेट कंपनी कांट गो फॉर द पर्पस ऑफ रेजिंग फंड, ओके। और ये जो लिस्टेड कंपनी की कंडीशन थी यहाँ पे, ये तो प्राइवेट पे एप्लीकेबल ही नहीं होती है, बिकॉज प्राइवेट कंपनी कांट गेट देयर सिक्योरिटी लिस्टेड ओवर द स्टॉक एक्सचेंज, ओके। वो सिर्फ पब्लिक कंपनी करा सकती है। सो इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, राइट इशू, बोनस इशू और प्राइवेट प्लेसमेंट। Further, the section deals with the issue of security, which is wider term, not restricted to equity, preference और डिवेंचर। आप देखे होंगे कि इस सेक्शन में जो वर्ड यूज़ किया हुआ है ना, यहाँ देखेंगे सेक्शन 23 सब सेक्शन 1 में वर्ड यूज़ किया है, में इशू सिक्योरिटीज़, ओके। एंड सिक्योरिटीज नॉट ओनली मीन्स इक्विटी, राइट। इट इज़ नॉट रिक्वेस्टेड टू इक्विटी, प्रेफरेंस और डिवेंचर्स। Security has been defined under section 2 subsection 81 to mean the security as defined in clause H of section 2 of this act. Fine. देखिए सेक्शन 2 सब सेक्शन 81 कहता है कि सिक्योरिटी का जो मीनिंग है ना, वो सेम है जो कि इस एक्ट के इस क्लॉज एंड सेक्शन में डिफाइन किया गया है, ओके। नाउ लेट्स सी व्हाट इज स्पेसिफाइड इन दिस सेक्शन। ये सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट वाले सेक्शन में देखिए कहता है सेक्शन 2 क्लॉज एच ऑफ सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट में सिक्योरिटी इंक्लूड शेयर्स, स्क्रिप्ट, स्टॉक, बॉन्ड, डिवेंचर स्टॉक और अदर मार्केटेबल सिक्योरिटी ऑफ अ लाइक नेचर। डेरिवेटिव है यूनिट और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय एनी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। Security receipt as defined in this clause of this act. Units or any other such instrument issued to investor under any mutual fund. Okay. Means अगर म्यूचुअल फंड स्कीम से भी कोई यूनिट मिलता है तो वो भी सिक्योरिटी में आएगा। Any certificate or instrument issued to an investor by any issuer being a special purpose distinct entity which poses any debt or receivable including mortgage debt assigned to such entity and acknowledging beneficial interest of such investor in such debt or receivable including mortgage debt as the case may be. बेसिकली ये एसपीवी का केस है, ओके। एसपीवी के केस में जो बेनिफिशियल राइट होल्ड करते हैं, दैट सर्टिफिकेट को भी हम लोग सिक्योरिटी के डेफिनेशन में इंक्लूड करेंगे। गवर्नमेंट सिक्योरिटी सच अदर इंस्ट्रूमेंट एज मे बी डिक्लेयर्ड, मतलब कोई और सिक्योरिटी को अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिक्लेयर कर दे कि इट इज़ सिक्योरिटी एंड राइट और इंटरेस्ट इन सिक्योरिटी। किसी सिक्योरिटी में अगर आपको कुछ राइट है या इफ़ यू हैव इंटरेस्ट इन दैट, तो फिर दैट इज ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ सिक्योरिटी। Thus the word securities include shares and other instrument, okay। मतलब आप इसे शेयर्स कहिए या फिर इतने सारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं ये भी। फर्दर अ पब्लिक कंपनी में इशू एनी ऑफ द अफोर्सेड सिक्योरिटी बाय वे ऑफ पब्लिक ऑफर, राइट, बोनस इशू और प्राइवेट प्लेसमेंट। पब्लिक कंपनी होगी ना, तो ये जितना भी सिक्योरिटी ऊपर स्पेसिफाई किया गया था, इसे पब्लिक ऑफर या राइट या बोनस इशू या प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू इशू कर सकती है। पब्लिक ऑफर का मतलब यहाँ पे होता है आईपीओ या एफपीओ। आईपीओ मतलब फर्स्ट टाइम वाला और फर्दर पब्लिक ऑफर मीन्स सब्सिक्वेंट। Of security to the public by a company or an offer for sale of security to the public by an existing shareholder. See, I told you ना that offer for sale जो होता है वो आपके existing shareholder का shares public के पास जा रहा है, okay। You are not issuing any shares through issue of prospectus। अब यहाँ पे पब्लिक ऑफर को डिफाइन किया है, देखिए मैंने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है, ये ऑलमोस्ट सेम होगा, ओके। कहता है पब्लिक ऑफर को डिफाइन किया गया है फर्स्ट टाइम इन द एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 23 एंड इट स्टेट्स दैट पब्लिक ऑफर इंक्लूड इनिशियल पब्लिक ऑफर और फर्दर पब्लिक ऑफर, ओके। ये दोनों चीज़ पब्लिक ऑफर में इंक्लूडेड है। ऑफ सिक्योरिटी टू द पब्लिक बाय कंपनी और एन ऑफर फॉर सेल ऑफ सिक्योरिटी टू द पब्लिक बाय एन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर थ्रू इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। बेसिकली पब्लिक ऑफर में तीन चीज़ आ गया, एक आईपीओ, एक एफपीओ और एक ऑफर फॉर सेल। फिर टू इंक्रीज द अकाउंटेबिलिटी ऑफ कंपनीज एंड इनहेंस प्रोटेक्शन टू स्मॉल इन्वेस्टर द टर्म प्राइवेट प्लेसमेंट हैज बीन डिफाइंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द एक्ट। मतलब कि अकाउंटेबिलिटी एज वेल एज ट्रांसपेरेंसी को इम्प्रूव करने के लिए प्राइवेट प्लेसमेंट को डिफाइन किया गया फॉर द फर्स्ट टाइम इन द एक्ट। सी एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 42 डिफाइंस प्राइवेट प्लेसमेंट एज एनी ऑफर और इन्विटेशन टू सब्सक्राइब और इशू ऑफ सिक्योरिटी टू अ सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन बाय कंपनी। प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है कि अलॉटेड जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, दैट इस ग्रुप को ही हमें अलॉट करना है। दैट्स व्हाई इट इज रिटन हियर कि जो ऑफर या इन्विटेशन होता है ना सब्सक्राइब करने के लिए या इशू ऑफ सिक्योरिटी के लिए, तो वो इन्विटेशन जाता है टू अ सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन बाय अ कंपनी, ओके, अदर देन बाय वे ऑफ पब्लिक ऑफर, मतलब पब्लिक ऑफर से जस्ट अपोजिट। थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन विच सेटिस्फाई द कंडीशन स्पेसिफाइड इन दिस सेक्शन। बेसिकली प्राइवेट प्लेसमेंट इज गवर्न बाय सेक्शन 42, ओके। तो ये कंडीशंस होने चाहिए कि जो आप ऑफर दे रहे हैं ये किसी सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन को जा रहा है और 42 सेक्शन के सारे कंडीशंस कंप्लाई होने चाहिए। आफ्टर दैट गवर्निंग लॉज, ये इशू ऑफ सिक्योरिटी को कौन कौन से लॉ गवर्न करते हैं। इशू ऑफ सिक्योरिटी इज गवर्न इन द फॉलोइंग मैनर। इन द केस ऑफ पब्लिक कंपनी विच इज लिस्टेड एंटिटी और इज डिजायरस ऑफ लिस्टिंग इट सिक्योरिटी ऑन स्टॉक एक्सचेंज, द इशू ऑफ सिक्योरिटी इज गवर्न बाय द कंपनीज एक्ट, the Security Contract Regulation Act, SEBI Act, and issue of capital and disclosure requirement regulation 2009. This regulation is being specified by SEBI, right?
कहता है अगर पब्लिक कंपनी है वो अगर लिस्टेड हो या उनको लिस्टिंग करने का मन हो तो उन्हें किससे किससे अप्लाई करना है, कंपनीज एक्ट, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, सेबी एक्ट, ICDR रेगुलेशन। उसके बाद है इन द केस ऑफ ऑल इशूज बाय प्राइवेट कंपनी, जब प्राइवेट कंपनी कर रही हो इशू तो सेम इज गवर्न बाय द कंपनीज एक्ट एंड द पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज एक्सरसाइज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, द ट्राइब्यूनल और द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी एज द केस में भी। मतलब प्राइवेट कंपनी अगर इशू कर रही है ना तो किसी भी तरह की इशू करेगी दे नीड टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। और ये जो पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होगा मतलब किसी तरह का फॉर्म अगर कुछ सबमिट हो रहा है लाइक PS3 जाता है एज अ रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, ओके, प्राइवेट प्लेसमेंट के केस में, तो दैट इज सबमिटेड टू ROC, ओके। मीन्स जो अथॉरिटीज इन्वॉल्व होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट होंगे, ट्राइब्यूनल होंगे और ROC होंगे इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। फर्दर सेक्शन 24 ऑफ द एक्ट empowers SEBI to regulate the matters relating to issue and transfer of securities and non-payment of dividend by listed company or those company which intend to get their security listed। मीन्स सेक्शन 24 जो है ना सेबी का, वन सेकेंड सॉरी सेबी का नहीं कंपनीज एक्ट का, सेक्शन 24 जो है कंपनीज एक्ट का, ये सेबी को एम्पावर करता है कि आप रेगुलेट कीजिए मैटर्स रिलेटिंग टू इशू एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी और अगर नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड हुआ है बाय द लिस्टेड कंपनी, ओके। मीन्स उनको डिविडेंड पे करना था, उन्होंने डिक्लेयर कर चुका था बट दे हैव नॉट पेड, ओके। और दोस्त कंपनी विच इंटेंड टू गेट देयर सिक्योरिटी लिस्टेड, मीन्स या तो वो लिस्टेड कंपनी हो या तो उनका इंटेंशन हो टू गेट देयर सिक्योरिटी लिस्टेड। अगर किसी कंपनी का इंटेंशन भी होता है दैट उन्हें नियर टर्म में लिस्ट कराना है तो उस केस में भी सेबी रेगुलेशन अप्लाई होते हैं। फिर एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 24 प्रोवाइड्स दैट ऑल पावर रिलेटिंग टू ऑल अदर मैटर रिलेटिंग टू प्रोस्पेक्टस, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, redemption of preference shares and any other matter specially provided in the act shall be exercised by the central government। देखिए यहाँ पे भी हम लोगों ने एक लाइन देखा था प्राइवेट कंपनी के केस में कि प्राइवेट कंपनी जो होगा ना वो गवर्न बाय कंपनीज एक्ट होगा और पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो होगा वो इन तीन लोगों के पास होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, ट्राइब्यूनल और रजिस्ट्रार। तो सेम चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 24 में इट इज स्पेसिफाइड दैट ऑल द पावर रिलेटिंग टू ऑल अदर मैटर्स लाइक प्रोस्पेक्टस, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, redemption of preferences and any other matter specifically provided in the act, that means company act, shall be exercised by the central government, tribunal or registrar of company as the case may be, ओके। तो ये सब जो पावर्स दिए हुए कंपनीज एक्ट में ये इन तीन लोग के द्वारा एक्सरसाइज किए जाएंगे। फर्दर द पावर रिलेटिंग टू फॉरवर्ड डीलिंग और इनसाइडर ट्रेडिंग हैज़ बीन डेलीगेटेड टू सेबी। इनसाइडर ट्रेडिंग से रिलेटेड काम, फॉरवर्ड डीलिंग से रिलेटेड वाला काम डेलीगेट किया गया है सेबी को फॉर लिस्टेड कंपनी और द कंपनी विच इंटेंड टू गेट देयर सिक्योरिटीज लिस्टेड। बेसिकली सेबी के रेगुलेशन वगैरह जितने भी है ये लिस्टेड कंपनी पे ही अप्लाई होते हैं या तो ऐसे कंपनी विच इंटेंड टू गेट देयर सिक्योरिटीज लिस्टेड। द नेक्स्ट टॉपिक फॉरवर्ड इज प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस, द जनरल मीनिंग ऑफ वर्ड प्रोस्पेक्टस इज अ काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट विच कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द रिलेटेड स्कीम, ओके। सो हियर वी विल सी दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस इन टर्म्स ऑफ शेयर कैपिटल। सो लेट्स स्टार्ट। हाँ, in general parlance prospectus refers to an information booklet or an offer document on the basis of which an investor invests in the security of an issuer company। देखिए इशू ऑफ कैपिटल के केस में क्या होता है, द प्रोस्पेक्टस कंटेन्स ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द इशू एंड ऑल द बैकग्राउंड अबाउट द कंपनी। तो उस प्रोस्पेक्टस को पढ़ने के बाद इन्वेस्टर टेक अ इन्फॉर्म्ड डिसीजन दैट वेदर वी हैव टू सब्सक्राइब टू द शेयर्स ऑफ दिस कंपनी और नॉट, राइट। सो दिस वाज द बेसिक मीनिंग। फर्दर इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 17 as to mean any document described or issued as a prospectus and includes a red herring prospectus referred to in section 32 or shelf prospectus in section 31 or any notice, circular, advertisement or other document inviting offers from the public for the subscription or purchase of any securities of a body corporate। See, this simply means that कोई भी notice, circular, advertisement या कोई भी document जिससे आप invite कर रहे हो offer from the public, राइट, और कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट जो कि हम उसे इशू करें एज अ प्रोस्पेक्टस। सी सेक्शन 2 सबसेक्शन 70 एज टू मीन एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड और इशूड एज अ प्रोस्पेक्टस। मीन्स किसी भी डॉक्यूमेंट को हम अगर ऐसा इंडिकेट करके इशू करेंगे कि दैट दिस इज अ प्रोस्पेक्टस, सो दैट वुड बी कवर्ड अंडर द डेफिनेशन इन द कंपनीज एक्ट, राइट। एंड इन दैट डॉक्यूमेंट वी विल फाइंड इन्विटेशन टू द पब्लिक फॉर द पर्पस ऑफ सब्सक्रिप्शन। उसके बाद यहाँ पे रेड हैरिंग प्रोस्पेक्टस को बताया कि अंडर एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 32 हैज बीन रेफर्ड टू मीन अ प्रोस्पेक्टस व्हिच डज नॉट इंक्लूड कंप्लीट पर्टिकुलर्स ऑफ द क्वांटम और प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज इंक्लूडेड देयरइन। सी रेड हैरिंग प्रोस्पेक्टस को एक तरह से ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस वी कैन से, ओके। इसमें क्या होता है ना कि या तो क्वांटम मीन्स नंबर ऑफ शेयर या तो प्राइस मेंशन नहीं होता है। दैट मीन्स एट द टाइम ऑफ फाइलिंग रेड हैरिंग प्रोस्पेक्टस मे बी एट दैट टाइम द साइज ऑफ इशू और प्राइस इज नॉट गेट
determined. Okay, so at the time of filing red herring prospectus, either of these two can be missing. The next is shelf prospectus, and it says that explanation to section 31 have been referred to mean a prospectus in respect of which the security or class of security included therein are issued for subscription in one or more issues over a certain period without the issue of a further prospectus. सिंपल मीनिंग में अगर बताऊं तो शेल्फ प्रोस्पेक्टस इज नथिंग बट उस प्रोस्पेक्टस के बेसिस पे आप एक दो बार इशूज़ को ला सकते हैं. ओके, दैट मीन्स ऐसा होता है दैट मीन्स आपने अगर एक बार इशू लाया तो यू हैव टू फाइल अ प्रोस्पेक्टस. इफ़ यू आर कमिंग अगेन यू हैव टू फाइल अ prospectus. But shelf prospectus is a kind of nature where you can bring one or more issues over a certain period of time basis that prospectus only. Okay, but इसमें बहुत सारे conditions होते हैं, like एक certain period होता है that the shelf prospectus will be valid for that period only. उस period में आप कितना भी issue ला सकते हैं on the basis of that shelf prospectus. और एक word इस explanation में use किया है that see been referred to mean a prospectus in respect of which the security or class of security included therein, okay, are issued for subscription in one or more issues over a certain period. That means आप जिस इशू को, जिस शेयर्स को बार बार ला रहे हो ना, वो ऑलरेडी वहाँ पे इंक्लूड रहना चाहिए, शेल्फ प्रोस्पेक्टस में ऑलरेडी मेंशन होना चाहिए. ओके, एंड दैट यू आर ऑफरिंग टू द पब्लिक अगेन एंड अगेन, दैट टू फॉर अ फिक्स्ड पीरियड फॉर अ सर्टेन पीरियड. सी दैट आई टोल्ड यू दैट शेल्फ प्रोस्पेक्टस का भी एक वैलिडिटी होता है. फिर the definition clarifies that any notice, circular, advertisement or any other document inviting offers from public for the subscription or purchase of security shall be included in the definition of prospectus. Like I told you that कोई भी notice होगा, circular होगा, advertisement होगा, कोई भी document होगा जहाँ पे invitation रहना चाहिए offers का from a public for the subscription, means we are inviting public that आइए आप subscribe कीजिए या तो आइए आप purchase कीजिए security को, right? तो वो definition of prospectus में include हो जाएगा because it is clearly written here any notice, यहाँ देखेंगे notice, circular, advertisement or other document inviting offers from the public, right? तो prospectus के definition को काफ़ी broad रखा गया है, जहाँ पे सिर्फ ये वाले element अगर पूरा हो जाते हैं ना, that you are inviting offers from the public, then it will fall under the prospectus. So prospectus includes red herring prospectus, that means draft prospectus where the details of quantum and price is not available. Shelf prospectus जो कि आप उस prospectus के help से further भी issues ला सकते हैं till certain period of time. Any document described or issued as prospectus, आप किसी document को अगर as a prospectus issue कर रहे हैं तो that would be also covered under the prospectus. And any notice, circular, advertisement or other documents inviting offer from the public for subscription or for purchase of the security. ये basically जो चार्ट बना हुआ है ये definition है, ठीक है, definition of prospectus. Further matters to be stated in the prospectus, we will see that prospectus में हम लोग क्या include करेंगे. Section 26 govern this, and every prospectus shall state such information and set out such reports on financial information as may be specified by SEBI in consultation with central government. Okay, इस prospectus का content क्या होगा ना, ये SEBI बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, if you will read it again, according to section 26 every prospectus shall state such information and set out such reports on financial information as may be specified by कौन, SEBI. Okay, in consultation with CG, मतलब ये specify करने में SEBI will consult CG that what the things are going to be stated in the prospectus. Further, there is one proviso in this respect. It says that provided that until the SEBI specifies the information and reports on financial information under this subsection, means ये जो SEBI को specify करना है ना, तो जब तक SEBI specify ना करे, the regulation made by SEBI under the SEBI Act in respect of such financial information or reports on financial information shall apply. जो अभी existing regulation है ना, that is being designed by SEBI in this respect, that will be applicable in the given case until and unless SEBI have specifies the information on that. Okay, that आपको prospectus में क्या include करना है, अगर SEBI ने specify नहीं किया है कुछ specifically, then we will follow the regulation designed by SEBI like LODR regulation and all. Okay, उसके बाद specifically shelf prospectus has been elaborated here. देखेंगे कि self prospectus क्या है. देखिए, it means a prospectus in respect of which the security or class of security included therein are issued for subscription in one or more issues over a certain period without the issue of further prospectus. This is the same meaning which we understand till now. अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया था, सेम एक्सप्लेन किया था, दैट ये एक ऐसा प्रोस्पेक्टस है जिससे सिक्योरिटी या क्लास ऑफ सिक्योरिटी जो
उस प्रोस्पेक्टस में इंक्लूड किया हुआ है, वी कैन इशू इन वन और मोर इशूज ओवर अ सर्टेन पीरियड विदाउट द इशू ऑफ फर्दर प्रोस्पेक्टस। मतलब हम लोग बार बार इशू तो करेंगे बट वी डोंट नीड टू इशू फर्दर प्रोस्पेक्टस। फिर कहता है इन सिंपल टर्म्स सेल्फ प्रोस्पेक्टस इज अ सिंगल प्रोस्पेक्टस फॉर मल्टीपल पब्लिक। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट क्लियर हियर दैट सेल्फ प्रोस्पेक्टस इज अ सिंगल प्रोस्पेक्टस फॉर मल्टीपल पब्लिक। मतलब आप मल्टीपल टाइम्स यू आर गोइंग टू पब्लिक बट you have issued only one prospectus, that is shell prospectus. Issuer is permitted to offer and sell security to the public without a separate prospectus for each act of offering for a certain period. Issuer means the entity which are offering their shares to the public. ठीक है, तो हम लोग ईश्वर को ये परमिटेड है कि आप बिना सेपरेट प्रोस्पेक्टस के इशू किए आप पब्लिक के पास जा सकते हो फॉर ईच एक्ट ऑफ ऑफरिंग फॉर अ सर्टेन पीरियड। ओके, मीन्स इसका पीरियड डिफाइंड रहता है। फिर अंडर द एक्ट एनी क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज एज द सेबी में प्रोवाइड बाय रेगुलेशन इन दिस बिहाफ में फाइल अ शेल्फ प्रोस्पेक्टस विद रजिस्ट्रार। Such prospectus is to be submitted at the stage of the first offer of security which shall include a period not exceeding 1 year as the period of validity of such prospectus। देखिए आरओसी के पास हमें शेल्फ प्रोस्पेक्टस को फाइल करना है और एक और बात है उसमें कि उसका जो पीरियड होगा ना, जो मैंने वैलिडिटी पीरियड बोला था, शैल इंडिकेट अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर एज अ पीरियड ऑफ वैलिडिटी ऑफ सच प्रोस्पेक्टस। 1 साल से ज़्यादा नहीं होगा period of validity of shelf prospectus. The validity period shall commence from the date of opening of the first offer of security under that prospectus and in respect of second or subsequent offer of such security issued during the period of validity of that prospectus no further prospectus is required. Further rule mention किया हुआ है relating to information memorandum। इसे याद रखना है that rule 10 of companies prospectus and allotment of security rules 2014 says that information memorandum का format होगा form PS2 और इसे हमें फाइल करना है रजिस्ट्रार को अलॉन्ग विद द फी एज प्रोवाइडेड इन दिस रूल विद इन 1 month प्रायर ऑफ द इशू ऑफ सेकेंड और सब्सिक्वेंट ऑफर ऑफ सिक्योरिटी अंडर द सेल्फ प्रोस्पेक्टस। सेल्फ प्रोस्पेक्टस से आपने पहला इशू लाया, राइट। अब जो दूसरा इशू लाना है ना, तो उससे कम से कम 1 महीने पहले हमें इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम फाइल कर देना है विद द रजिस्ट्रार एंड दैट इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम विल गेट फाइल्ड इन द फॉर्म PS2। उसके बाद द सेक्शन ऑल्सो प्रोवाइड्स अ बेनिफिटिंग प्रोविजन फॉर द इन्वेस्टर। द प्रोवाइजर प्रोवाइड्स दैट वेयर अ कंपनी और एनी अदर पर्सन हैज रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर द अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी अलॉन्ग विद द एडवांस पेमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन बिफोर द मेकिंग ऑफ एनी सच चेंज, द कंपनी और अदर पर्सन शैल इंटीमेट द चेंजेस टू सच एप्लीकेंट एंड इफ दे एक्सप्रेस अ डिजायर टू विड्रॉ देयर एप्लीकेशन द कंपनी और अदर पर्सन शैल रिफंड ऑल द मनी रिसीव्ड एज अ सब्सक्रिप्शन विद इन 15 days thereof। दिस बेसिकली मीन दैट ये जो चेंजेस हुआ ना, दैट वी आर इन्फॉर्मिंग इन द इंफॉर्मेशन memorandum, that what we need to do, we will just intimate about this to the applicant also, and after coming to know about these changes, if the applicant would be of opinion that I want to withdraw our application, in that case we will refund their money within 15 days। Okay, coming to the next heading, red herring prospectus। What we know about red herring prospectus till now, it is a kind of draft prospectus where the quantum and price of security is not available। Okay, let's see it in bit detail। See, red herring prospectus means a prospectus which does not include complete particulars of the quantum or price of the securities included therein। In simple terms, a red herring prospectus contains most of the information pertaining to the company's operation and prospects but does not include key details of the issue such as its price and the number of shares offered। मतलब रेड हैरिंग प्रोस्पेक्टस में सारे इन्फॉर्मेशन तो होते हैं बट ये 2 इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, प्राइस एंड नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड। Then section 32 says that a company proposing to make an offer of security may issue red herring prospectus prior to the issue of prospectus। मतलब prospectus के पहले हम लोग red herring prospectus issue करते हैं। That's why I am telling to consider it as a draft prospectus, okay, not a final one। Such company proposing to issue a red herring prospectus shall file it with the registrar at least 3 days prior to the opening of the subscription list and the offer। सब्सक्रिप्शन के ओपन होने के 3 दिन पहले आप रजिस्ट्रार के पास रेड हैरिंग प्रोस्पेक्टस को फाइल कर सकते हैं। उसके बाद रेड हैरिंग प्रोस्पेक्टस शैल कैरी द सेम ऑब्लिगेशन एज आर एप्लीकेबल टू प्रोस्पेक्टस एंड एनी वेरिएशन बिटवीन द रेड हैरिंग प्रोस्पेक्टस एंड प्रोस्पेक्टस शैल बी हाईलाइटेड एज वेरिएशन इन द प्रोस्पेक्टस। सी कहता है कि यह ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस है, दिस डजंट मीन दैट यू आर फ्री फ्रॉम योर ऑब्लिगेशन। ओके, जो ऑब्लिगेशन आपका प्रोस्पेक्टस के लिए सेम विल बी एप्लीकेबल ऑन रेड हैरिंग प्रोस्पेक्टस। और फर्दर जब आप इसे कंप्लीट करते हैं तो किसी भी तरह का अगर वेरिएशन आता है ना, कि अगर किसी तरह का वेरिएशन आता है बिटवीन रेड हैरिंग प्रोस्पेक्टस एंड प्रोस्पेक्टस, ये जो प्रोस्पेक्टस है ये फाइनल वाला है। ओके, तो आप अगर बाद में जो फाइल करते हैं उसमें और इस रेड हैरिंग प्रोस्पेक्टस में अगर कुछ डिफरेंस है तो हम ये मानेंगे दैट इट इज़ वेरिएशन इन द प्रोस्पेक्टस, जो कि नहीं होना चाहिए। ओके,
Upon the closing of the offer of security under this section, the prospectus is stating therein the total capital raised, whether by way of debt or share capital, and the closing price of security and any other details as are not included in red herring prospectus shall be filed with registrar and SEBI. देखिए आपने जो रेड हैरिंग प्रोस्पेक्टस दिया है उसमें नहीं है क्वांटम ऑफ सिक्योरिटी एंड प्राइस, राइट. दैट्स वाई इट इज टेलिंग हियर दैट जब ये ऑफर क्लोज हो जाए ना, अपॉन द क्लोजिंग ऑफ ऑफर ऑफ सिक्योरिटी अंडर दिस सेक्शन द प्रोस्पेक्टस इज स्टेटिंग देयर इन, मतलब अब आपको ऐसा प्रोस्पेक्टस फाइल करना पड़ेगा जिसमें कि टोटल कैपिटल रेज्ड हो, चाहे वो आप डिबेंचर से इशू कर रहे हो या फिर शेयर कैपिटल से, एंड द क्लोजिंग प्राइस, मतलब कहने का मतलब कि टोटल कैपिटल का नंबर देना है और प्राइस देना है, जो कि आपका रेड हैरिंग प्रोस्पेक्टस में नहीं था. And any other details as are not included in red herring prospectus. Means whatever details, if it is not included in red herring prospectus, you have to file it upon the closing of offer of the security with the registrar and SEBI. Fine. Next one is abridged prospectus. इसका मतलब क्या होता है? See, section 2 subsection 1 means a memorandum containing such salient feature of a prospectus as may be specified by SEBI by making regulations in this behalf. देखिए अब्रीज्ड प्रोस्पेक्टस जो होता है वो एक ऐसा शीट होता है जो कि प्रोस्पेक्टस का मीन्स की हाईलाइट्स बताता है. ओके, दैट्स व्हाई इट इज रिटन हियर दैट सच सेलिएंट फीचर और वी कैन से दैट की हाईलाइट्स ऑफ द प्रोस्पेक्टस. ओके, वाज अ बिट डिस्कनेक्ट, वन सेकेंड. एंड बेसिकली वन मोर रेलेवेंस ऑफ दिस अब्रीज्ड प्रोस्पेक्टस इज जितना भी शेयर का एप्लीकेशन जाता है ना एप्लीकेंट के पास, तो हर एप्लीकेशन के साथ आपको अब्रीज्ड प्रोस्पेक्टस लगाना है. सी, अब्रीज्ड प्रोस्पेक्टस का बेसिक मीनिंग क्या हुआ? अ डॉक्यूमेंट जिसमें कि प्रोस्पेक्टस का सेलिएंट फीचर है, प्रोस्पेक्टस की हाईलाइट्स है. ओके, तो हम लोग जब एप्लीकेंट्स को एप्लीकेशन देते हैं, शेयर का एप्लीकेशन देते हैं फॉर द पर्पस दैट अब वो अप्लाई करेंगे शेयर के लिए, तो उसके साथ हम लोग अब्रीज्ड प्रोस्पेक्टस भी देते हैं. सो दैट अगर उनको रेफर करना है ना कुछ, दैट प्रोस्पेक्टस में मेन चीज़ क्या है, सो इन दैट केस दे विल सी जस्ट अब्रीज्ड प्रोस्पेक्टस. ओके, सो यहाँ लिखा हुआ है कि सेक्शन 33 कहता है नो फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन फॉर द परचेज ऑफ एनी सिक्योरिटीज शैल बी इशूड अनलेस सच फॉर्म इज अकम्पनीड बाय एन अब्रीज्ड प्रोस्पेक्टस. यही बात मैंने आपको भी बताया कि किसी भी एप्लीकेशन फॉर्म को जो कि सिक्योरिटी के परचेज के लिए हो उसको हम इशू नहीं कर सकते अनलेस, मतलब जब तक उस फॉर्म के साथ अकम्पनीड किया गया हो अब्रीज्ड प्रोस्पेक्टस. Right, a copy of the prospectus shall on a request being made by any person before the closing of subscription list and offer be furnished to him. आप जब अब्रीज्ड प्रोस्पेक्टस देते हैं तो उसके बाद अगर कोई रिक्वेस्ट करते हो तो फिर वी कैन प्रोवाइड अ कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस टू देम. Further, it is showing that nothing aforesaid shall apply if it is shown that the form of application was issued. Means ये जो दो केस हम लोग देखेंगे उसमें हम लोगों को ये वाला रूल फॉलो नहीं करना है कि एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अब्रीज्ड प्रोस्पेक्टस का भी जाना जरूरी है. ओके, सी, पहला इन कनेक्शन विद अ बोनाफाइड इन्विटेशन टू अ पर्सन टू एंटर इनटू अंडर राइटिंग एग्रीमेंट विद रिस्पेक्ट टू सच सिक्योरिटी. मतलब इन केस आप अपने शेयर्स को अगर अंडर राइटिंग कराते हैं तो उस केस में आप जब एप्लीकेशन दोगे तो आपको अब्रीज्ड प्रोस्पेक्टस नहीं लगाना है. राइट, अंडर राइटिंग मीन्स ये होता है कि इन केस ऑफ अगर अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया आपका शेयर, मीन्स जितना आपने एक्सपेक्ट किया था या जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का लिमिट है उससे कम पब्लिक लोगों ने सब्सक्राइब किया, तो आपने अगर किसी से अंडर राइटिंग एग्रीमेंट कर रखा होगा तो वो पार्टी सब्सक्राइब कर लेंगे. ओके, मीन्स जितना भी आपका शॉर्टफॉल हुआ होगा ना फ्रॉम मिनिमम सब्सक्रिप्शन उतना वो अंडर राइटर विल सब्सक्राइब. ओके, तो एक तो है कि आप अगर अंडर राइटिंग अग्रीमेंट में एंटर कर रहे होंगे, इन दैट केस यू डोंट नीड टू कंप्लाई विद दिस अब्रीज्ड प्रोस्पेक्टस वाला कंडीशन. सेकंड, इन रिलेशन टू सिक्योरिटी विच वर नॉट ऑफर टू द पब्लिक, मगर आप मीन्स आप अगर पब्लिक को नहीं ऑफर कर रहे हैं सो यू डोंट नीड टू accompany the application form with abridged prospectus. The penal provision provides that the company which makes any default in complying with the provision shall liable to penalty of 50,000 rupees for each default. एक भी बार अगर एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अब्रीज्ड प्रोस्पेक्टस देना था और आपने नहीं दिया तो यू विल बी लायबल विथ 50,000 फॉर ईच डिफॉल्ट. ओके, नाउ कमिंग टू ऑफर फॉर सेल डीम्ड प्रोस्पेक्टस. ऑफर फॉर सेल का मीनिंग क्या होता था? व्हेन यू आर सेलिंग योर एग्जिस्टिंग शेयर्स टू द पब्लिक. ओके, कहता है पब्लिक ऑफर इंक्लूड एन ऑफर फॉर सेल ऑफ सिक्योरिटी टू द पब्लिक बाय एन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर थ्रू इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस. देखिए होता क्या है कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास शेयर है ना, वो बस हम लोग पब्लिक को ऑफर करते हैं थ्रू इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस. इसमें भी प्रोस्पेक्टस का इशुएंस होता है. कहता है सेक्शन 25 ऑफ दैट वेयर अ कंपनी अलॉट और एग्री टू अलॉट एनी सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी विद अ व्यू टू ऑल और एनी ऑफ दोज सिक्योरिटी बीइंग ऑफर्ड फॉर सेल टू द पब्लिक. Any document by which the offer for sale to the public is made shall for all purpose be deemed to be prospectus issued by the company. कहता है अगर कंपनी
अलॉट करता है या अग्री टू अलॉट कोई भी सिक्योरिटी ऑफ अ कंपनी एज अ ऑफर फॉर सेल। ओके, तो कोई भी डॉक्यूमेंट से वो ऑफर फॉर सेल को अगर इफेक्ट किया गया ना, मतलब किसी भी ऑफर फॉर मीन्स किसी भी डॉक्यूमेंट से यू आर इफेक्टिंग दैट ऑफर फॉर सेल टू द पब्लिक, तो दैट वुड बी डीम्ड टू बी अ प्रोस्पेक्टस इशूड बाय द कंपनी। ओके, ऑफर फॉर सेल का के केस में बेसिकली आप किसी भी डॉक्यूमेंट से अगर अपना ऑफर को इंडोर्स करा रहे हो, सो इन दैट केस दैट डॉक्यूमेंट विल टेक फॉर्म ऑफ प्रोस्पेक्टस, राइट। फिर इन सिंपल टर्म्स एनी डॉक्यूमेंट बाय विच द ऑफर फॉर सेल टू अ पब्लिक इज मेड सेल फॉर ऑल पर्पस बी ट्रीटेड एज प्रोस्पेक्टस, सेम थिंग विच आई टोल्ड यू। ओके, कहता द डॉक्यूमेंट ऑफर फॉर सेल इज एन इन्विटेशन टू द जनरल पब्लिक टू परचेज द शेयर्स ऑफ कंपनी थ्रू एन इंटरमीडियरी सच एज एन इशूइंग हाउस और मर्चेंट बैंक। मतलब बेसिकली इट इज टेलिंग दैट ये जो डॉक्यूमेंट होगा इट इज इन्वाइटिंग द जनरल पब्लिक टू परचेज द शेयर्स ऑफ कंपनी। A company may allot or agree to allot any shares or debenture to an issue house without there being any intention on the part of company to make shares or debenture available directly to the public through issue of prospectus. This issue house का involvement आता है when the company don't want to issue shares directly to the public. आप अगर देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ था ना that to purchase the shares of company through an intermediary. Okay, means this issuing house or merchant bank are acting as an intermediary between the company and the public. तो a company may allot or agree to allot any shares or debenture to an issue house without there being any intention on the part of company to make shares or debenture available directly to the public through issue of prospectus. Means जब the company means when the company doesn't have intention to make their shares or debenture available directly to the public, what they do, they just issue the shares to the issue house. Fine, and further the issue house in turn makes an offer for sale to the public. वो जो issue house होते हैं वो शेयर को ऑफर करते हैं पब्लिक के पास। All enactments and rules of law as to the content of prospectus and as to liability in respect of misstatement, omissions from prospectus or otherwise relating to prospectus shall apply to such offer for sale. See, offer for sale में prospectus को बोला गया है कि कोई भी डॉक्यूमेंट से आप अगर ऑफर कर रहे हो तो वो आपका prospectus माना जाएगा। तो that would be prospectus to that extent कि लॉ में जैसे सेक्शन 34 में दिया हुआ है liability for misstatement in prospectus, तो everything will apply on that document also. ऐसा नहीं कि ऑफर फॉर सेल में किसी डॉक्यूमेंट को डीम्ड प्रोस्पेक्टस माने हैं तो उस पर प्रोस्पेक्टस वाले प्रोविज़न अप्लाई नहीं होंगे। ओके, जो भी मिस स्टेटमेंट से रिलेटेड प्रोविज़न है, ओमिशन से रिलेटेड है प्रोविज़न, एवरीथिंग विल अप्लाई ऑन दैट डॉक्यूमेंट। फर्दर फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन टू द मैटर्स रिक्वायर्ड टू बी स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस में व्हाट एडिशनल वी कैन डिस्क्लोज the net amount of consideration received or to be received by the company in respect of the security to which the offer relate। ठीक है, हम जो ऑफर कर रहे हैं तो नेट अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन कितना रिसीव हो चुका है या कितना रिसीव होने वाला है। द टाइम एंड प्लेस एट विच द कॉन्ट्रैक्ट वेयर अंडर द सेट सिक्योरिटी हैव बीन और आर टू बी अलॉटेड मे बी इंस्पेक्टेड। मीन्स ये ऑफर फॉर सेल का जो कॉन्ट्रैक्ट है इसका मीन्स व्हेन दिस कॉन्ट्रैक्ट विल गेट इंस्पेक्टेड उसका आपको टाइम और प्लेस यू हैव टू नोटिफाई इन द प्रोस्पेक्टस। फर्दर अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन in order to constitute offer for sale either of the following condition need to be fulfilled। ऑफर फॉर सेल होने के लिए either of the following मतलब या तो ये A और B। ओके, ऑफर फॉर सेल टू द पब्लिक वाज मेड विद इन 6 months आफ्टर द अलॉटमेंट और अग्रीमेंट टू अलॉट। ओके, मतलब ये अलॉटमेंट या अग्रीमेंट टू अलॉट के विद इन 6 months होना चाहिए ऑफर फॉर सेल। ओके, or at the date when the offer was made, the whole consideration to be received by the company in respect of the security had not been received by it. This simply means that when at the date when the offer was made, उस time company को consideration receive नहीं हुआ है। Okay. फिर as for signing of the prospectus, the section provides that where a person making an offer to which this section relates is a company or firm, it shall be sufficient if offer document is signed on behalf of the company by 2 directors of the company and in case of firm by not less than 1/2 of the partners in the firm as the case may be। See, अगर बात प्रोस्पेक्टस को साइन करने की आती है ना तो दिस सेक्शन टेल दैट वेयर अ पर्सन मेकिंग ऑफर टू विच दिस सेक्शन इज अ कंपनी और फर्म। अगर कंपनी है और फर्म है तो कंपनी के केस में क्या होगा कि 2 डायरेक्टर अगर साइन कर देंगे तो चलेगा। फर्म के केस में क्या होंगे, कम से कम 1/2 ऑफ द पार्टनर ऑफ द फर्म साइन करना पड़ेगा। इफ़ देयर आर टोटल 6 पार्टनर एटलीस्ट 3 को तो साइन करना ही पड़ेगा। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, ऑफर ऑफ सेल ऑफ शेयर्स बाय सर्टेन मेंबर्स ऑफ अ कंपनी। ओके, दिस इज ऑल्सो ऑफर फॉर सेल ओनली बट द थिंग व्हाट इज हैपनिंग हियर इज जो कंपनी के मेंबर है ना दे आर ऑफरिंग देयर शेयर्स टू द पब्लिक। Section 28 of the Act permits certain member of company in consultation with board of directors to offer in accordance with provision of any law for the timing in force the whole or part of their holdings of shares to the public। मतलब मेंबर ऑफ कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बात करके अपना होल या पार्ट ऑफ होल्डिंग को पब्लिक के पास ऑफर कर सकते हैं।
सेम डेफिनेशन है प्रोस्पेक्टस का, डॉक्यूमेंट बाय विच द ऑफर फॉर सेल टू पब्लिक इज मेड शैल फॉर ऑल द पर्पस बी डीम्ड टू बी प्रोस्पेक्टस. फाइन. All law and rule made hereunder as to the content of prospectus and as to liability in respect of misstatement and omission from prospectus shall apply as if this is prospectus issued by the company. Same thing which I told you that जितने भी law है कि content क्या होना चाहिए, liability क्या होगी अगर आप misstatement करते हो, omission करते हो, तो वो same इस पे applicable होंगे. Further, the section alleged that the members, whether individual or body corporate, whose shares are proposed to be offered to the public, shall collectively authorize the company whose shares were offered for sale to the public to take all action in respect of offer for sale for and on their behalf, and they shall reimburse the company all expenses incurred by it on this matter. See, जो भी मेंबर चाहे वो इंडिविजुअल हो या बॉडी कॉर्पोरेट हो, वो कंपनी को इस बात का रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे दैट आई वांट टू ऑफर माई दिस शेयर्स टू द पब्लिक. ओके, और कंपनी उनके बिहाफ पे उस शेयर को ऑफर करेगी. इसमें जितना भी एक्सपेंस होगा ना वो रिइम्बर्स कंपनी करा लेगी. फाइन. द रूल्स इन दिस कंटेक्स्ट प्रोवाइड दैट प्रोविजन ऑफ पार्ट 1 ऑफ चैप्टर 3 नेमली प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी एंड रूल्स मेड देयर अंडर शैल बी एप्लीकेबल टू एन ऑफर फॉर सेल रेफर टू इन सेक्शन 28 एक्सेप्ट फॉर द फॉलोइंग नेमली. सी, कह रहा है कि जो प्रोविजन है ना चैप्टर 3 में रिलेटिंग टू प्रोस्पेक्टस, ये जो चैप्टर का नाम है प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी, ये एप्लीकेबल होंगे टू एन ऑफर फॉर सेल जो कि सेक्शन 28 में दिया हुआ है एक्सेप्ट फॉर द फॉलोइंग. मतलब इन सब में सिर्फ एप्लीकेबल नहीं होगा ये चैप्टर 3. See, the provisions relating to the minimum subscription, the provision for minimum application value means offer for sale में as per the prospectus जो minimum subscription नहीं भी आता है तो वो चलेगा. minimum application value से you don't need to comply. The provision requiring any statement to be made by board of directors in respect of utilization of money, मतलब जो फंड हम इशू कर रहे हैं उसका यूटिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, regarding this the board of director need not to make any statement. Okay, in case of offer for sale I am talking. See, यहाँ लिखा हुआ है shall be applicable to an offer for sale referred to in section 28 except for the following, means for this respect only it is not applicable. What? Chapter 3. And the last one, any other provision or information which cannot be complied or gathered by the offerer with detailed justification for not being able to comply with such provision. And in the furtherance it is telling that rules also provide that such offer document or prospectus issued under the section shall disclose the name of entity bearing the cost of making the offer for sale along with reason. सी, मैंने बोला ना दैट जो मेंबर अपना शेयर को ऑफर कर रहे हैं वो कंपनी को ऑथराइज करेंगे दैट आपको मेरा कंपनी ऑफर करना है, सॉरी अपना मीन्स मेरा शेयर ऑफर करना है. तो प्रोस्पेक्टस में यू नीड टू इंडिकेट द नेम ऑफ एंटिटी हु आर बियरिंग द कॉस्ट. फाइन. उसके बाद इशू ऑफ सिक्योरिटीज एट प्रीमियम. बेसिकली मतलब ये है कि आप पार वैल्यू से ज़्यादा पे शेयर कर रहे हैं. इशू आपका शेयर का फेस वैल्यू था 10 रुपये बट यू आर इशूइंग इट एट द प्राइस ऑफ 12 और 13, दैट मीन्स मोर देन 10. Okay, so let's read the provision regarding this. A company may issue securities at premium. See, जब आप ज़्यादा पे इशू करते हो तो you can say that I have issued my securities at a premium when it is able to sell them at a price above par or above nominal value. अपने par वैल्यू से जब आप ज़्यादा पे करते हो इशू या फिर nominal वैल्यू से ज़्यादा पे. The company that 13 does not stipulate any condition or restriction regulating the issue of security by a company at a premium. कोई restriction नहीं है कंपनी को. If they want they can go for issuance of securities at premium. However, the Companies Act does impose conditions regulating the utilization of the amount of premium collected on security. ये जो प्रीमियम का पोर्शन होता है ना, लाइक पार वैल्यू इज 10 एंड यू हैव इशूड द सिक्योरिटी एट 14, तो 4 रुपीज़ इज द प्रीमियम. सो वॉट एवर यू हैव रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ प्रीमियम, जो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जाएगा उसके यूटिलाइजेशन के लिए कंपनीज एक्ट के अंदर रिस्ट्रिक्शन है. ओके, यू आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू इशू सिक्योरिटीज एट प्रीमियम बट यू हैव सम रिस्ट्रिक्शन अंडर कंपनीज एक्ट टू यूटिलाइज दैट प्रीमियम अमाउंट. लेट्स सी द नेक्स्ट पेज. शेयर प्रीमियम टू बी ट्रांसफर टू द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट. इसका बेसिकली यही मतलब होगा कि ये जो 4 रुपया एक्स्ट्रा रिसीव किए ना उसको हमें सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है. सी, सेक्शन 52 सबसेक्शन 1 स्टेट्स दैट व्हेन अ कंपनी इशू शेयर एट प्रीमियम वेदर फॉर कैश और अदरवाइज अ सम इक्वल टू एग्रीगेट अमाउंट ऑफ प्रीमियम, मतलब कि 4 रुपया जो हुआ है रिसीव उसे हम कहते हैं प्रीमियम, received on those shares shall be transferred to a security premium account, and the provision of this act relating to the reduction of share capital of company shall, except as provided in this section, apply as if the security premium account were the paid up share capital of the company. Means we will consider that the security premium account is a part of paid up share capital of the company. Okay, now see the most important thing, that how to utilize security premium. This is the special restriction given under Companies Act, that how you utilize this security premium account में जितना भी है amount. Okay, see, in accordance with provision of this section, the security premium can be utilized only for, ये exclusive है list. Okay, only for issuing fully paid bonus shares to member, writing of the balance of preliminary expense like deferred revenue expenditure and all, writing of commission paid or discount allowed or expenses incurred on issue of shares or debenture of the company,
अगर हम कभी शेयर या डिवेंचर डिस्काउंट पे करते हैं इशू, तो उसका जो कमीशन पेड है और या डिस्काउंट अलाउड है उसको राइट ऑफ करने के लिए। फॉर प्रोवाइडिंग फॉर द प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्शन ऑफ एनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, अगर आप प्रेफरेंस शेयर को रिडीम किए हैं या किसी डिवेंचर को प्रीमियम पे रिडीम किया है ना, तो उस प्रीमियम अमाउंट को प्रोवाइड करने के लिए, राइट ऑफ करने के लिए, यू कैन यूज़ द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट फॉर द परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर्स और अदर सिक्योरिटी अंडर 68 सेक्शन 68 मतलब बायबैक। ओके, तो इन सब के लिए हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का यूज़ करेंगे, इसके बाहर नहीं। ओके, बहुत बार इससे क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। या इसके बाद देखेंगे, कहता है 52 सबसेक्शन 3 स्टेट दैट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट मे नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट सबसेक्शन 1 एंड 2। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ देखिएगा, ये है सबसेक्शन 2, ये है सबसेक्शन 1। मतलब इस दोनों प्रोविज़न का ओवरराइडिंग इफेक्ट देते हुए कहता है कि हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को यूज़ कर सकते हैं, बी अप्लाइड बाय सच क्लास ऑफ कंपनी एज मे बी प्रिस्क्राइब, मतलब रूल्स में कुछ क्लास ऑफ कंपनी प्रिस्क्राइब किए गए हैं और जिनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अंडर सेक्शन 133, वो इन सब पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकता है। सी, इन पेइंग अप अनइशूड इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी टू बी इशूड टू मेंबर ऑफ कंपनी एज फुली पेड अप बोनस शेयर, मतलब कि जिनका अनइशूड इक्विटी शेयर है, मतलब आप कह सकते हैं कि पार्टली पेड अप है, ठीक है, तो उसे फुली पेड अप बनाने के लिए। इन राइटिंग ऑफ द एक्सपेंस ऑफ और द कमीशन पेड और डिस्काउंट एंड ऑन एनी इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी, ये तो वहाँ भी दिया हुआ था। बट एक बात ध्यान रखें कि अब डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं होता है। ओके, ये रिस्ट्रिक्शन है स्पेशली कंपनीज एक्ट में, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले होता था फॉर द परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर और अदर सिक्योरिटी अंडर सेक्शन 68, ये भी बायबैक का ही केस है। ओके, तो जो न्यू चीज़ था वो बस ये था। ओके, ये दोनों तो ऊपर था ही, बी एंड सी। फर्स्टली द प्रीमियम कैन नॉट बी ट्रीटेड एज प्रॉफिट एंड सच द अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सी, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट जो होता है, इट इज़ नॉट फ्री रिजर्व। ओके, और हम लोग जब भी डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, वो हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है, वो फ्री रिजर्व होता है। इससे भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं दैट आपको डिविडेंड इतना डिक्लेयर करना है और आपको बहुत सारे अकाउंट्स का नाम दिया होगा रिजर्व्स का, तो उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी होगा, बट यू विल नॉट यूटिलाइज सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड बिकॉज दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। ओके, secondly the amount of premium whether received in cash or in kind must be kept in separate account known as security premium account, ये हम लोगों ने ऑलरेडी देखा। thirdly the amount of premium is to be maintained with same sanctity as the share capital, हम लोगों ने ये भी देखा था दैट ये सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट को वी हैव टू कंसिडर एज अ पेड अप कैपिटल। ओके, सेम थिंग यहाँ पे कह रहा है। फिर वेयर अ कंपनी इशूज शेयर्स एट अ प्रीमियम इवन दो द कंसिडरेशन मे बी अदर देन कैश, अगर कंपनी प्रीमियम पे शेयर इशू करती है, कंसिडरेशन अगर अदर देन कैश भी है, तो अ सम इक्वल टू अमाउंट और वैल्यू ऑफ प्रीमियम मस्ट बी ट्रांसफर टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। मतलब ऐसा नहीं कि आपने कैश पे नहीं इशू किया, यू हैव नॉट रिसीव्ड कैश। ओके, बहुत बार ऐसा भी होता है कि फॉर सम कंसिडरेशन लाइक मशीनरी एंड ऑल यू जस्ट इशू शेयर्स। ओके, तो उस केस में भी आपको अगर कैश में अमाउंट नहीं भी रिसीव हुआ है, तो यू हैव टू ट्रांसफ़र जो वैल्यू होगा ना प्रीमियम का इन सेपरेट अकाउंट। यू कांट टेक अ एक्सक्यूज दैट मुझे कैश नहीं रिसीव हुआ है तो मैं कहाँ से ट्रांसफ़र करूँ। ओके, यू हैव टू मेक अ सेपरेट अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, इन केस यू इशू शेयर्स एट प्रीमियम वेदर इन कैश और नॉट। फाइन, एनी प्रीमियम पेड डज नॉट गिव द शेयर होल्डर एनी प्रेफरेंशियल राइट इन केस ऑफ वाइंडिंग अप। देखिए, प्रीमियम पे मैंने शेयर खरीदा, दैट मीन्स मैंने पार वैल्यू से ज़्यादा पे किया, तो इससे शेयर होल्डर को कुछ एडिशनल राइट नहीं मिल रहा है। फाइन, ये उनका चॉइस है, उन्होंने खुद से खरीदा है। ये प्रीमियम पे करना डजंट मीन दैट मीन्स ये प्रीमियम पे करने के बदले दे आर गेटिंग सम प्रेफरेंशियल राइट। Monies in the security premium account cannot be treated as free reserve, I told already, as they are in the nature of capital reserve। वो free reserve नहीं होता है, security premium account का जो nature है वो capital reserve है, that is not free reserve। उनका यूज़ हम लोग सिर्फ इन सब चीज़ के लिए करेंगे, जो जो लिखा हुआ था ABCDE एंड ये फॉर सच क्लासेस ऑफ कंपनी ABC, बट नॉट फॉर द पर्पज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। ओके, फर्दर है, देखिए वही बात, प्रोहिबिशन टू इशू द शेयर्स एट डिस्काउंट, हम लोग शेयर्स को अब डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, पहले ये होता था। ओके, सेक्शन 53 कहता है एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 54। सेक्शन 54 में है इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स। वहाँ पे देखिए, प्रीमियम मतलब कि पार वैल्यू से ज़्यादा पे इशू करना और डिस्काउंट पे मतलब पार वैल्यू से कम पे इशू करना। तो एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 54, स्वेट इक्विटी शेयर्स में थोड़ा सा कंसिडरेशन कम मिलता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट अ कंपनी शैल नॉट इशू शेयर्स एट डिस्काउंट, एनी शेयर इशूड बाय कंपनी एट अ डिस्काउंट शैल बी वॉइड, टोटली वॉइड एक्सेप्ट 54। स्वेट इक्विटी शेयर्स को अगर हम इग्नोर करें तो कोई भी कंपनी डिस्काउंट पे शेयर्स नहीं इशू कर सकती है, राइट, इट वुड बी वॉइड कंप्लीटली।
A company may issue shares at a discount to its creditors when its debt is converted into shares in pursuance of any statutory resolution plan or debt restructuring scheme in accordance with any guidelines or directions or regulations as specified by RBI under the Reserve Bank of India और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। सी कभी ऐसा होता है ना कि किसी क्रेडिटर को कुछ पैसा बाकी था, राइट, और उसके स्कीम के अकॉर्डिंग और आरबीआई के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आप शेयर इशू कर रहे हैं और वो स्कीम में ऐसा मेंशन किया हुआ था दैट यू हैव टू इशू एट डिस्काउंट, इन दैट केस इट इज़ ओके। सी बेसिकली क्या होता है ना उस केस में दैट आपको क्रेडिटर को पे करना है पैसा, राइट, तो आप पे करने के बदले उनको शेयर करते हैं इशू। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दैट अ कंपनी में इशू शेयर्स एट डिस्काउंट टू इट्स क्रेडिटर्स व्हेन इट्स डेट इज कन्वर्टेड इनटू शेयर्स। जो पैसा मेरा बाकी था ना उसके बदले मैंने उसे शेयर इशू कर दिया इन परसुएंस ऑफ एनी स्टैट्यूटरी रिजोल्यूशन प्लान और डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम इन अकॉर्डेंस विद एनी गाइडलाइंस। अगर ये आईबीसी में अगर कुछ ऐसा प्रोविज़न है या फिर किसी डेट रिस्ट्रक्चरिंग गाइडलाइंस में या आरबीआई ने डायरेक्शन दिया है दैट आप इस डेट को शेयर्स में कन्वर्ट कर दो, ओके, और उस गाइडलाइंस में उस डायरेक्शंस में उस स्कीम में ऐसा मेंशन है दैट यू हैव टू इशू एट डिस्काउंट, इन दैट केस इट इज़ ओके। तो सेक्शन 54 में ओके और एक ये एक्सेप्शन में ओके है, ओके। Further, where any company fails to comply with the provision of this section, such company and every officer who is in default shall be liable to penalty which may extend to an amount equal to the amount raised through the issue at discount or 5 lakh rupees, whichever is less. And the company shall also be liable to refund all money received with interest at the rate of 12% per annum from the date issue of such share to the person to whom such shares have been issued. अगर आप शेयर को डिस्काउंट में इशू करते हुए पकड़े गए तो आपको कितना का पेनल्टी लगेगा? अमाउंट इक्वल टू द अमाउंट रेज्ड थ्रू द इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, जितना पे आप मीन्स जितना का आपका टोटल इशू अमाउंट था या 5 लाख विच एवर इज लेस, राइट, और कंपनी को जितना भी पैसा रिसीव किया है सारा रिटर्न करना होगा विथ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12%, ओके। फिर कहता है लेटेस्ट रिमेंबर इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट इज प्रोहिबिटेड एक्सेप्ट बाय इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर प्रीमियम अमाउंट इज नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बिल्कुल ये ध्यान रहना है, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़, ये अलॉटमेंट करने का कॉन्सेप्ट क्या है? सेक्शन 39 है एंड रूल 12 ऑफ कंपनी प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी रूल्स 2014 डील्स विद अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी। सी फर्स्ट हेडिंग इज अलॉटमेंट, गोइंग टू द फर्स्ट पॉइंट. It says allotment of any security of company offered to the public for subscription shall be made only when the amount stated in the prospectus of the minimum amount has been subscribed. See, there is something called minimum subscription and it is specified in the prospectus that मैंने अगर 1 लाख का शेयर ऑफर किया है पब्लिक को तो if the 80,000 is subscribed, at least 80,000 सब्सक्राइब होगा then only we will proceed with the process of allotment. Okay, so that's what it is telling, that allotment of any security of company ऑफर टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, मतलब कंपनी ने ऑफर किया पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए, उसका अलॉटमेंट शैल बी मेड ओनली व्हेन द अमाउंट स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस ऑफ द मिनिमम अमाउंट. ये जो 1 लाख मैंने ऑफर किया था और मिनिमम वी हैव स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस एट 80,000 हैज़ बीन सब्सक्राइब्ड एंड द सम्स पेबल ऑन एप्लीकेशन फॉर द अमाउंट सो स्टेटेड हैव बीन पेड टू एंड रिसीव्ड बाय द कंपनी बाय चेक और अदर इंस्ट्रूमेंट. ओके, सो मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ जाना चाहिए. इन दैट केस ओनली द कंपनी विल प्रोसीड विद अलॉटमेंट. Whenever a company having a share capital makes an allotment of security, it shall file with the registrar a return of allotment. फॉर्म PS3 में हमें फाइल करना पड़ता है विदिन 30 days. ओके, और उसमें फीस लगता है एज पर स्पेसिफाइड इन द फीस रूल्स. Along with Form PS3, a certified list of allottees stating their names, address, occupation, if any, and number of security allotted to each of the allottees shall be attached. See, जब हम लोग ये फॉर्म PS3 देते हैं तो उसके साथ अटैच करना पड़ता है हमें लिस्ट ऑफ अलॉटीज़. वहाँ पे हमें उनका नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन एंड ऑल मेंशन करना पड़ता है अलॉन्ग विद द नंबर ऑफ सिक्योरिटीज अलॉटेड टू देम. फर्दर, इन द केस ऑफ सिक्योरिटीज नॉट बीइंग बोनस शेयर्स अलॉटेड एज द फुली और पार्टली पेड अप फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, a copy of contract duly stamped pursuant to which the security have been allotted together with any contract of sale if relating to property or an asset or a contract for service or other consideration shall be attached. आपने शेयर इशू किया, आपने कैश पे नहीं इशू किया है. ओके, आपने अदर देन कैश कंसिडरेशन पे शेयर इशू किया है, तो इन दैट केस अलॉन्ग विद दैट PS3 यू हैव टू अटैच अ कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ओके, देखिए जब भी हम लोग कैश के अलावा करते हैं इशू तो एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, उस कॉन्ट्रैक्ट का कॉपी आपको करना है अटैच, या फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी और एन असेट. अगर आप किसी असेट या प्रॉपर्टी के अलावा के अगेंस्ट अगर आप शेयर इशू किए तो आपको उसका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अटैच करना पड़ेगा. उसके बाद अगर कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट रिड्यूस टू राइटिंग, मीन्स अगर वो कॉन्ट्रैक्ट अगर राइटिंग में नहीं है,
See, when a contract is not reduced to writing, the company shall furnish along with Form PS3 complete particulars of the contract stamped with the same stamp duty as would have been payable if the contract had been reduced in writing, and those particulars shall be deemed to be an instrument within the meaning of Indian Stamp Act. सिंपली कहता है अगर राइटिंग में नहीं है तो फिर आपको जितने भी कॉन्ट्रैक्ट का पर्टिकुलर्स है वो मेंशन करना है और उस पर स्टाम्प ड्यूटी पे करना है. ओके, और स्टाम्प ड्यूटी बिल्कुल वैसे पे करना है लाइक वो कॉन्ट्रैक्ट हो. हाँ, सो उसके बाद उस डॉक्यूमेंट को हम लोग मानेंगे इंस्ट्रूमेंट अंडर द इंडियन स्टाम्प एक्ट, एंड द रजिस्ट्रार में एज अ कंडीशन ऑफ फिलिंग द पर्टिकुलर्स रिक्वायर्ड दैट द स्टाम्प ड्यूटी पेबल देयर ऑन बी एडजुडिकेटेड अंडर सेक्शन 31. मतलब दैट विल बी सिमिलरली ट्रीटेड अंडर द इंडियन स्टाम्प एक्ट एज अ कॉन्ट्रैक्ट. Further, a report of registered valuer in respect of valuation of the consideration shall also be attached along with the contract of sale if relating to property or an asset or a contract of service as the case may be. See, suppose आपने शेयर इशू किया है इन कंसिडरेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी और एन असेट, तो उस प्रॉपर्टी और असेट का वैल्यूएशन कैसे हुआ है आपको उसका वैल्यूएशन रिपोर्ट भी अटैच करना पड़ेगा फॉर्म PS3 के साथ. बिकॉज सी सपोज आपने वैल्यू किया कि बिल्डिंग का वैल्यू है 10 लाख और उसके अगेंस्ट मैंने 10 लाख का शेयर किया इशू, तो ये बिल्डिंग का शेयर अगर 15 लाख होता तो आपको 15 लाख का करना पड़ता है इशू. दैट्स वाई अ प्रॉपर वैल्यूएशन ऑफ दैट असेट और प्रॉपर्टी अगेंस्ट विद द सिक्योरिटी इज बीइंग इशूड इज रिक्वायर्ड. ओके, तो इसीलिए आप मीन्स एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर से रिपोर्ट इशू कराना पड़ता है फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ द कंसिडरेशन. फिर अगर इशू ऑफ बोनस शेयर का केस है तो कॉपी ऑफ रिजोल्यूशन पास्ड इन जनरल मीटिंग ऑथराइजिंग द इशू ऑफ सच शेयर शैल बी अटैच्ड टू फॉर्म PS3. इफ यू हैव मीन्स इफ द केस इज ऑफ इशुएंस ऑफ बोनस शेयर, तो बोनस शेयर को इशू करने के लिए रिजोल्यूशन पास होता है ओके जनरल मीटिंग में, तो उस रिजोल्यूशन का कॉपी भी PS3 में अटैच करना है. अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन ऑन एवरी सिक्योरिटी शैल नॉट बी लेस देन 5% ऑफ द नॉमिनल अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी और सच अदर परसेंटेज और अमाउंट में बी स्पेसिफाइड बाय सेबी बाय मेकिंग रेगुलेशन इन दिस बिहाफ. सी, हम लोग जो कॉल पे पैसा मंगाते हैं ना इंस्टॉलमेंट पे, तो पहले एप्लीकेशन टाइम में जो मंगाना है वो 5% से कम नहीं होना चाहिए ऑफ द नॉमिनल वैल्यू. दैट मीन्स अगर 10 रुपये का शेयर है, 10 रुपये अगर नॉमिनल अमाउंट है तो उसका 5% से कम नहीं होना चाहिए, राइट. दैट मीन्स 50 पैसे. 50 पैसे से कम एप्लीकेशन पे अमाउंट वी विल नॉट कॉल. ओके, moving to the next page. Next heading is refund of money. That when you have to refund in case where the stated minimum amount has not been subscribed, वो जो minimum subscription है वो अगर नहीं हुआ and the sum payable on application is not received within a period of 30 days from the date of issue of prospectus. जितना एप्लीकेशन पे करना था वो विद इन पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस इफ इट इज़ नॉट रिसीव्ड ओके और एनी सच अदर पीरियड एज मे बी स्पेसिफाइड बाय सेबी. मतलब या तो 30 डेज या तो एनी अदर पीरियड विच इज स्पेसिफाइड बाय सेबी. तो अमाउंट रिसीव्ड एज अबव शैल बी रिटर्न. ओके, सिंपल है. मैंने एग्जांपल दिया था कि 1 लाख मैंने ऑफर किया, 80,000 वाज द मिनिमम अमाउंट, और अगर मुझे 60,000 ही रिसीव हुआ तो वो 60,000 वी हैव टू रिटर्न. द एप्लीकेशन मनी शैल बी रीपेड विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द इशू एंड इफ एनी सच मनी इज नॉट सो रीपेड विद इन सच पीरियड, तो डायरेक्टर जो होंगे कंपनी के और जो भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट होंगे उनको दे आर लायबल टू रीपे द मनी विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15%. मतलब अगर आप 15 डेज के अंदर इशू क्लोज होने के 15 डेज के अंदर अगर आप पैसे नहीं लौटाते हैं तो आपको 15% पर एनम का इंटरेस्ट लगेगा. पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट इन केस ऑफ एनी डिफॉल्ट द कंपनी एंड इट्स ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी लायबल टू पेनल्टी फॉर ईच डिफॉल्ट ऑफ 1,000 रुपीज फॉर ईच डे ड्यूरिंग विच सच डिफॉल्ट कंटिन्यूज और 1 लाख रुपीज विच एवर इज लेस. अगर आपको रिफंड करने में कुछ डिफॉल्ट होता है या आप किसी भी तरह का डिफॉल्ट करते हैं अंडर दिस सेक्शन, तो कंपनी एंड इट्स ऑफिसर दोनों को 1,000 रुपीज़ पर डे का फाइन लगेगा. ओके, that means penalty up to the day during which such default continues or 1 lakh rupees whichever is less. Let us remember, whenever a company having a share capital makes any allotment of security, it shall file with the registrar PS3 within 30 days from the date of allotment. इसके रिगार्डिंग हम लोगों ने पिछले पेज में देखा था. फॉर्म PS3 is return of allotment where we give the details of the allotment of shares made. उसके बाद एक केस लॉ दिया हुआ है यहाँ पे. All these case laws are based on return of allotment only. Okay. Just read them and try to understand that what are the judgments and what are the stands taken. See, general principles regarding to allotment. I am proceeding. Allotment के regarding कुछ principle है. Allotment of shares means the act of appropriation by the board of directors of the company out of the previously unappropriated capital of the company of a certain number of shares to a person who have made application for shares. Okay, it is on allotment that shares come into existence. See, allotment of share कुछ नहीं है. हम जब when we have just offered our share for the purpose of application that please apply for my share. Okay, after that people have applied and then we have did the allotment. So जब allotment कर दिए ना, it is on allotment that shares comes into existence. जब allotment करते हैं
at that time share will bond, right? Here the following general principles should be observed with regard to allotment of security. Things that you should keep in mind regarding allotment. The allotment should be made by proper authority. The proper authority may be the board of directors of the company or a committee authorized to allot security on behalf of the board. देखिए, कभी भी किसी कंपनी का शेयर को अलॉट करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर कोई कमिटी अगर इसके रिगार्डिंग अपॉइंट हुए होंगे तो दे विल अलॉट द सिक्योरिटी. Allotment security must be made within a reasonable time. As per section 600 an offer must be accepted within a reasonable time. कहने का वही मतलब है. ये ऑफ़र से कोरिलेट किया गया है. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो ऑफ़र का कॉन्सेप्ट है उसको इससे कोरिलेट किया गया है. बट व्हाट इज़ रीजनेबल टाइम इज़ अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इन ईच केस. एन एप्लीकेंट में रिफ्यूज टू टेक सिक्योरिटी इफ द अलॉटमेंट इज मेड आफ्टर ए लॉन्ग टाइम. मीन्स आपने एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया बट अलॉटमेंट काफ़ी टाइम बाद दे रहे, तो इट मे बी अ केस दैट जो एप्लीकेंट है वो अब लेने से मना कर दे, राइट. And as per section 56 within a period of 2 months from the date of allotment in case of allotment of any of its shares. फिर the allotment should be absolute and unconditional. आपने एक बार अलॉट कर दिया तो उसमें कोई कंडीशन नहीं लगाना है दैट ये जो हम लोगों ने आपको अलॉट किया है दैट इज सब्जेक्ट टू सम कंडीशन. ओके, सिक्योरिटीज मस्ट बी अलॉटेड ऑन सेम टर्म्स ऑन विच दे वर अप्लाइड फॉर एंड एज दे स्टेटेड इन द एप्लीकेशन फॉर सिक्योरिटी. एप्लीकेशन के टाइम जो कंडीशन रहेगा सेम कंडीशन अलॉटमेंट के टाइम भी रहेगा. यू डोंट हैव टू चेंज. Allotment of securities subject to certain condition is also not valid. Similarly, if the number of securities allotted is less than those applied for, it cannot be termed as absolute allotment. अगर आपने जितना अप्लाई किया था उतना आपको अलॉट नहीं होता है तो उसे हम लोग एब्सोल्यूट अलॉटमेंट नहीं कहते हैं. फिर द अलॉटमेंट मस्ट बी कम्युनिकेटेड एज मेंशन्ड अर्लियर. पोस्टिंग ऑफ लेटर ऑफ अलॉटमेंट और अलॉटमेंट एडवाइस विल बी टेकन एज वैलिड कम्युनिकेशन इफ द लेटर इज लॉस्ट इन ट्रांजिट. ध्यान देना है यहाँ पे कि जब अलॉटमेंट हो जाए तो हमें कम्युनिकेट करना है, राइट. तो आप जब पोस्टिंग मीन्स लेटर ऑफ अलॉटमेंट को जब आप पोस्ट कर देते हैं तो दैट वुड बी टेकन एज अ वैलिड कम्युनिकेशन दैट आपने कम्युनिकेट कर दिया है. इवन इफ योर लेटर गेट लॉस्ट इन ट्रांजिट, रास्ते में अगर लेटर खो जाता है यहाँ, स्टिल इट वुड बी कंसिडर एज अ वैलिड. या सो allotment against application only. Section 255 of the act requires that a person should agree in writing to become a member. देखिए, जब अलॉटमेंट हो जाता है तो दैट शेयर होल्डर बिकम अ मेंबर ऑफ कंपनी. ओके, तो वो राइटिंग में अग्री होनी चाहिए दैट यस आई वांट टू बिकम अ मेंबर. दिस सेक्शन 2 सबसेक्शन 55 से. नो अलॉटमेंट शुड नॉट बी इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ एनी अदर लॉ. इफ सिक्योरिटी अलॉटेड ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ माइनर द अलॉटमेंट विल बी वॉइड. आप अलॉटमेंट करते समय यू हैव टू कीप इन माइंड दैट किसी और भी लॉ का कोई कॉन्ट्रावेंशन ना हो रहा हो. ओके, एंड इफ सिक्योरिटीज आर अलॉटेड ऑन एन एप्लीकेशन ऑफ अ माइनर. कोई माइनर ने अगर अप्लाई किया था और आपने अलॉट कर दिया तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज अ वॉइड. फर्दर अगेन कुछ केस लॉ है, जस्ट गो थ्रू इट. ये जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है. इट इज ऑल्सो रिलेट टू अलॉटमेंट ओनली. लाइक एक में पढ़ता हूँ, रुकिए. An allotment may be valid even if some defect was there in the appointment of directors but which was subsequently discovered. See, ये रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टॉकवर्ड में ऐसा हुआ था दैट अगर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स में कुछ डिफेक्ट है ना, कहने का मतलब सपोज कोई डायरेक्टर अगर मीन्स डिसक्वालीफाइड थे बट स्टिल दे हैव बीइंग अलॉटेड, आई मीन अपॉइंटेड. ओके, सो कोई डायरेक्टर थे जिन पे कि सेक्शन 167 या 164 लग रहा था डिसक्वालिफिकेशन का. ओके, एंड स्टिल दे गॉट अपॉइंटेड. और फिर उनके अप्रूव करने के बाद, बिकॉज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव करते हैं अलॉटमेंट, उनके अप्रूव करने पे शेयर का अलॉटमेंट हुआ. तो जिस समय अलॉटमेंट हुआ उस समय ये पता नहीं था कि देयर इज डिफेक्ट इन द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, राइट. तो अगर ये बात बाद में पता चलती है ना शेयर के अलॉटमेंट होने के बाद, स्टिल दैट अलॉटमेंट इज वैलिड. ओके, सो ऐसे ही यहाँ पे दिया हुआ है डिसीजन ऑफ दिस टोटल 5 केस लॉज. जस्ट गो थ्रू इट. आई एम प्रोसीडिंग विद द शेयर सर्टिफिकेट. व्हाट इज शेयर सर्टिफिकेट? वैसे शेयर सर्टिफिकेट अब कम ही एग्जिस्ट होता है बिकॉज अब फिजिकल शेयर का ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट हट गया है. ऑल द शेयर्स आर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. डीमैट अकाउंट में रहता है शेयर. जैसे अपना बैंक अकाउंट में पैसा रहता है उसी तरह डीमैट अकाउंट में शेयर्स रहते हैं. बट ठीक है, देखते हैं. अ शेयर सर्टिफिकेट इज अ सर्टिफिकेट इशूड टू द मेंबर बाय द कंपनी स्पेसिफाइंग द नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय हिम एंड द अमाउंट पेड ऑन ईच शेयर. शेयर सर्टिफिकेट कंपनी इशू करती है मेंबर्स को. उसमें लिखती है कि आपने कितना नंबर ऑफ शेयर रखा है और कितना अमाउंट पे किया है. सेक्शन 45 कहता है कि ईच शेयर ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी शैल बी डिस्टिंग्विश्ड विद अ डिस्ट्रिक्ट नंबर फॉर इट्स इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन. कहने का मतलब है कि शेयर सर्टिफिकेट पे सेपरेट नंबर रहना चाहिए. ओके,
जैसे नोट का नंबर होता है ना करेंसी का, वैसे ही. However, such distinctions are not be required as per proviso to section 45 in case where the held by a person as a beneficial interest in such in the record of depository. ये केस है डीमैट अकाउंट का. ओके जब आपका शेयर डीमैट में है तो फिर उसमें नंबरिंग नहीं होता है. जैसे आपका पैसा अगर बैंक अकाउंट पे है तो जो अकाउंट में पैसा है उसका कुछ नंबरिंग होता है क्या? ओके तो सेम थिंग इट इज टेलिंग दैट ये डिस्टिंक्टिव नंबर का जो कंडीशन है दैट इज नॉट अप्लाई वेयर द शेयर्स आर हेल्ड इन द डिपॉजिटरी. Here, in terms of Section 46(1) of the Act, a certificate under the common seal, if any, of the company or signed by two directors or by a director and the company secretary, wherever the company has appointed a CS, is prima facie evidence of the title of the person to the shares specified therein. Section 46(1) कह रहा है कि आपके पास अगर सर्टिफिकेट है ना कंपनी के कॉमन सील का और दो डायरेक्टर या एक डायरेक्टर और एक CS ने अगर साइन किया हो तो ये प्राइमा फेसी एविडेंस है कि ये शेयर आपका है. टाइटल ऑफ द पर्सन टू द शेयर्स स्पेसिफाइड देयरइन. उस सर्टिफिकेट में जितना शेयर लिखा होगा ना उसका टाइटल उस इंसान के पास होगा. राइट. द सर्टिफिकेट इज द ओनली डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ द टाइटल इन द पोजीशन ऑफ द शेयर होल्डर. सर्टिफिकेट ही एक टाइटल ऑफ शेयर्स है दैट ये शेयर उनका ही बनता है. ओके जस्ट काइंड ऑफ ओनरशिप का एविडेंस, बट इट इज नॉट अ वारंटी ऑफ टाइटल बाय द कंपनी इशूइंग इट. व्हाई? बिकॉज द शेयर्स आर ट्रांसफरेबल. ओके व्हेन कैन अ कंपनी इशू अ डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट? सी ये जो शेयर सर्टिफिकेट है ना इसको डुप्लीकेट भी इशू हो जाता है. डुप्लीकेट सर्टिफिकेट शेयर्स में भी इशूड इफ सच सर्टिफिकेट प्रूव टू हैव बीन लॉस्ट, अगर खो गया या डिस्ट्रॉय हो गया या फिर डिफेस्ड हो गया, म्यूटिलेटेड हो गया, मतलब किसी तरह टूट गया, फट गया, मतलब टूट तो नहीं सकता है, फट सकता है, या डिस्ट्रॉय हो गया, या इट इज़ बीइंग सेंडेड टू द कंपनी. ओके मैनर ऑफ इशूइंग शेयर सर्टिफिकेट या डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट मीन्स हाउ वी विल इशू दिस सर्टिफिकेट. सी subsection 3 of section 46 states that notwithstanding anything contained in the article of company, आर्टिकल में कुछ भी लिखा हो, ठीक है, we don't care, the manner of issue of certificate of shares or the duplicate thereof, the form of such certificate, the particulars to be entered in registered of member and the other matters shall such as may be prescribed. Okay means rules में जो दिया हुआ है ना that share certificate में या duplicate share certificate में you have to mention this, we have to mention those also, those only. Okay अब यहाँ पे आई थिंक रूल के बारे में किया है डिस्कस दैट व्हाट वी हैव टू इंक्लूड इन द शेयर सर्टिफिकेट्स एंड अदर रिलेवेंट थिंग्स प्रिस्क्राइब्ड इन द रूल 5 and 6 ऑफ कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रूल 2014. सी रूल 5 इज फॉर इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट एंड रूल 6 इज फॉर डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट. सी इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट बोर्ड resolution to be passed and letter of allotment or fractional coupons of requested value must be surrendered to the company. In case the letter of allotment is lost, the board may impose reasonable terms. देखिए अलॉटमेंट होने के बाद जो लेटर ऑफ अलॉटमेंट दिया जाता है दैट लेटर ऑफ अलॉटमेंट विल बी सरेंडर टू द कंपनी एंड देन कंपनी विल गिव शेयर सर्टिफिकेट. इसमें है कि रिन्यूअल टू बी मेड ओनली ऑन सरेंडर ऑफ ओल्ड सर्टिफिकेट. जब आप ओल्ड सर्टिफिकेट का सरेंडर करते हैं इन दैट केस ओनली उसका रिन्यूअल होगा. सर्टिफिकेट शैल बी इशूड इन फॉर्म नंबर SH1. जो शेयर सर्टिफिकेट होता है उसका नंबर याद रखना है, फॉर्म नंबर SH1, एंड शैल स्पेसिफाई द नेम ऑफ पर्सन इन हुज फेवर द सर्टिफिकेट इज इशूड, शेयर टू विच इट रिलेट्स एंड द अमाउंट पेड अप देयरऑन. नेम लिखा हुआ होगा ओनर का एंड अमाउंट पेड अप लिखा होगा. कंपनी में चार्ज फी फॉर डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट एज द बोर्ड डिसाइड बट नॉट एक्सीडिंग 50 पर सर्टिफिकेट. डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू करने का फीस होगा मैक्सिमम 50. उसके बाद एवरी सर्टिफिकेट शैल स्पेसिफाई द शेयर्स टू विच इट रिलेट्स एंड द अमाउंट पेड अप देयरऑन एंड शैल बी साइंड बाय टू डायरेक्टर और बाय डायरेक्टर एंड द CS वेयर द कंपनी हैज अपॉइंटेड CS. देखिए ये जो शेयर सर्टिफिकेट होगा उसका साइनिंग रिक्वायरमेंट याद रखना है कि दो डायरेक्टर साइन करेंगे, या तो अगर कंपनी में CS होंगे तो एक डायरेक्टर एंड एक CS, और शेयर सर्टिफिकेट में पेड अप अमाउंट होगा. इन केस द कंपनी है तो कॉमन सील इट शैल बी अफिक्स्ड इन द प्रेजेंस ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड टू साइन द सर्टिफिकेट. जिनको इनको साइन करने की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है उनके प्रेजेंस में कंपनी का कॉमन सील लगेगा. ओके मीन्स अगर हो उसके पास, बिकॉज कॉमन सील इज नो मोर मैंडेटरी. अगर वन पर्सन कंपनी है तो इट शैल बी सफिशिएंट इफ द सर्टिफिकेट साइंड बाय डायरेक्टर एंड द CS और एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय बोर्ड फॉर द पर्पस. वन पर्सन कंपनी के केस में एक डायरेक्टर और CS साइन कर दे या फिर कोई और पर्सन दैट इज ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड. Now a director or a CS shall be deemed to have signed the share certificate if its signature is printed thereon as a facsimile signature by means of any machine equipment or other mechanical means such as engraving in metal or lithography, or digitally signed but not by means of a rubber stamp provided that the director or company secretary shall be personally responsible for permitting the affixation of a signature thus and the safe custody of any machine equipment or other material used for the purpose. कहने का मतलब कि वो जो रबर स्टाम्प होता है ना उस तरह का साइन नहीं होना चाहिए, डिजिटली साइन हो सकता है. ओके डिजिटल सिग्नेचर अगर बना हुआ है कंपनी सेक्रेटरी या डायरेक्टर का तो ही कैन साइन डिजिटली, बट रबर स्टाम्प काइंड ऑफ थिंग नहीं चलेगा.
ये डुप्लीकेट वाले सेक्शन में आते हैं। कंपनी शैल नॉट इशू एनी डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इन लिeu ऑफ दोज लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड विदाउट द प्रायर कंसेंट ऑफ बोर्ड। देखिए अगर सरेंडर करते हैं तो उस केस में रिन्यूअल हो जाएगा, बट अगर लॉस्ट और डिस्ट्रॉय हुआ है ना तो प्रायर कंसेंट ऑफ बोर्ड इज रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ issuance of duplicate share certificate. And if the company is listed, then the duplicate share certificate shall be issued within 45 days, and if the company is unlisted, it shall be issued the certificate within 3 months from the date of submission of complete document with the company. आप जब complete document सबमिट कर देते हैं उसके 3 महीना के अंदर डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। इफ़ यू आर अनलिस्टेड कंपनी, इफ लिस्टेड कंपनी देन 45 days ओनली। फिर पर्टिकुलर्स ऑफ शेयर सर्टिफिकेट टू बी इंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर, मतलब सर्टिफिकेट शेयर सर्टिफिकेट का जो भी डिटेल होगा दैट नीड टू बी इंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। इधर है पर्टिकुलर्स ऑफ रिन्यूड एंड डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट टू बी इंटर्ड इन रजिस्टर ऑफ रिन्यूड एंड डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट मेंटेन्ड इन फॉर्म नंबर SH2। एक फॉर्म नंबर SH2 होता है, उसे हम लोग कहते हैं रजिस्टर ऑफ रिन्यूड एंड डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, राइट। उसमें सारा पर्टिकुलर्स मेंशन होगा अबाउट द डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। फिर द रजिस्टर shall be kept at the registered office of the company or at such other place where the register of member is kept, and it shall be preserved permanently and shall be kept in the custody of the CS of the company or any other person authorized by the board। सी ये याद रखना जरूरी है दैट आपको कब तक वो जो SH2 है उसको कब तक आपको रखना है अपने पास, तो यू हैव टू कीप परमानेंटली, और उस प्लेस पे रखना है जहाँ पे रजिस्टर ऑफ मेंबर है, एंड दैट वुड बी इन द कस्टडी ऑफ CS और एनी अदर पर्सन दैट आर ऑथराइज्ड इन दिस इफेक्ट। On fraudulent issue, the company shall be punishable with fine which shall not be less than 5 times the face value of shares involved, which may extend to 10 times or rupees 10 crore, whichever is higher. Officer and default shall be liable under 447C। अगर आपने फ्रॉडलेंटली इशू किया डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट तो आपको 5 times द फेस वैल्यू ऑफ शेयर लगेगा, जो कि एक्सटेंड हो सकता है 10 times, ओके, या तो रुपीज़ 10 crore, whichever is higher। फर्दर जो भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट होंगे वो जो पीनल प्रोविजन है ना सेक्शन 447 का, उसके लिए वो अट्रैक्ट हो जाएगा, फाइन। फिर मेंटेनेंस ऑफ शेयर सर्टिफिकेट फॉर्म्स एंड रिलेटेड बुक्स एंड डॉक्यूमेंट, आपको शेयर सर्टिफिकेट फॉर्म और जो उससे रिलेटेड बुक्स एंड डॉक्यूमेंट का मेंटेनेंस करना है। रूल 7 गवर्न्स दिस। रूल 7 फाइन कहता है ऑल ब्लैंक फॉर्म्स टू बी यूज्ड फॉर इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट शैल बी प्रिंटेड एंड द प्रिंटिंग शैल बी डन ओनली ऑन द अथॉरिटी ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ बोर्ड एंड बी ब्लैंक फॉर्म शैल बी consecutively machine numbered, okay, and the forms and blocks, engravings, facsimiles and hues relating to the printing of such forms shall be kept in the custody of secretary, मतलब CS, or such other person as the board may authorize for the purpose, and the CS or other person officer shall be responsible for rendering on account of these forms। The blank application form जो print होता है ना for the purpose of share certificate that should be kept in the custody of secretary, okay, और उसका issuance करने के पहले that should be authorized by the board also। Further, it is telling कि the following person shall be responsible for the maintenance, preservation and safe custody of all the books and documents relating to the issue of share certificate, including the blank forms of share certificate referred above। ये जो शेयर सर्टिफिकेट का जो ब्लैंक फॉर्म है, मतलब कि ब्लैंक फॉर्म मीन्स बेसिकली हुआ कि आपने 10 फॉर्म मान लिया प्रिंट किया था, दैट ये फॉर्म फिल करेंगे तो फिर उनको हम लोग शेयर सर्टिफिकेट देंगे, तो वो जो ब्लैंक फॉर्म है उसकी बात किया जा रहा है। तो शेयर सर्टिफिकेट इशू करने से या ब्लैंक फॉर्म से रिलेटेड जो भी बुक्स ऑफ डॉक्यूमेंट है उसको मेंटेन करना है और प्रिजर्व करना है और सेफ कस्टडी में रखना है ऑफ द फॉलोइंग पर्सन। कौन कौन? कमिटी ऑफ द बोर्ड इफ ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड और विद द कंपनी एट CS, तो CS मतलब मेनली तो CS के पास रखना है, बट अगर बोर्ड ने किसी कमेटी को ऑथराइज किया है ना तो दैट कमिटी विल कीप। वेयर द कंपनी हैज नो CS और डायरेक्टर स्पेसिफिकली ऑथराइज्ड बाय बोर्ड फॉर सच पर्पस, अगर CS नहीं है कंपनी में तो किसी डायरेक्टर को ऑथराइज किया जाएगा दैट यू हैव टू प्रिजर्व द books and account relating to the share certificate and the blank documents। फिर all books mentioned above shall be preserved in good order not less than 30 years, and in case of disputed case shall be preserved permanently, and all certificates rendered to a company shall immediately be defaced by stamping or printing the word cancelled in bold letter and may be destroyed after the expiry of 3 years from the date on which they are surrendered under the authority resolution of board in presence of person duly appointed by the board on this behalf। मतलब इतना है कि ये जितना भी बुक है आपको कम से कम 30 साल रखना है, और अगर कुछ डिस्प्यूटेड केस हो ना, मतलब कुछ अगर लिटिगेशन चल रहा है फिर तो हमेशा के लिए रखना है। लिटिगेशन के केस में, डिस्प्यूटेड केस के केस में हमेशा रखने के लिए इसलिए बोला है बिकॉज कभी भी उस डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट पड़ सकता है, राइट। प्लस जो भी सर्टिफिकेट सरेंडर कर दिया गया कंपनी को, कंपनी उस पर एक स्टाम्प लगाएगी, देखिए उसको डिफेस कर दिया जाएगा बाय स्टाम्पिंग और प्रिंटिंग बाय वर्ड कैंसल्ड, एक बोल्ड लेटर में, दैट मीन्स कैप्स लॉक में बिल्कुल कैंसल्ड प्रिंट कर देना है, राइट, और उसे 3 साल के एक्सपायरी के बाद डिस्ट्रॉय भी कर देना है शेयर्स सर्टिफिकेट सरेंडर्ड को।
The above mentioned provision shall not apply to cancellation of certificate of security under subsection 2 of section 6 of Depository Act. इस सेक्शन के अकॉर्डिंग जो cancellation of certificate of security होगा तो उसमें ये सारे provisions applicable नहीं होंगे. फिर रिकॉर्ड ऑफ डिपॉजिटरी प्राइमा फेसी एविडेंस फॉर शेयर्स इन डिपॉजिटरी फॉर्म. देखिए जो भी शेयर डीमैट फॉर्म में रहता है ना वो तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है. जैसे शेयर सर्टिफिकेट के केस में कोई फिजिकल शेयर है तो हम लोगों ने अभी देखा कि शेयर सर्टिफिकेट इज अ प्राइमा फेसी एविडेंस फॉर द टाइटल ऑफ शेयर्स, राइट. बट अगर वो डीमैट फॉर्म में है तो सेक्शन 46(4) कहता है कि वेयर अ शेयर इज हेल्ड इन डिपॉजिटरी फॉर्म, दैट मीन्स डीमैट फॉर्म, तो द रिकॉर्ड ऑफ डिपॉजिटरी इज द प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ बेनिफिशियल ओनर. डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड में नाम लिखा होता है बेनिफिशियल ओनर का, या आप कह सकते हैं जिसका शेयर है उसका, ठीक है. तो दैट वुड बी कॉल्ड एज अ प्राइमा फेसी एविडेंस. Issuing duplicate share certificate to defraud. According to section this, if a company with an intention to defraud issue a duplicate certificate of shares. अगर कंपनी अगर फ्रॉडलेंटली डुप्लीकेट शेयर इशू करती है, अभी हम लोगों ने देखा था, ठीक है, बट इसका सेपरेट सेक्शन दिया हुआ है, तो उनको फाइन लगेगा विच शैल नॉट बी लेस देन 5 times द फेस वैल्यू इन्वॉल्व इन द इशू ऑफ डुप्लीकेट सर्टिफिकेट, एक्सटेंड टू 10 times द फेस वैल्यू. 5 times से स्टार्ट होगा, कैन एक्सटेंड टू 10 times और 10 crore विच एवर इज हायर, एंड एवरी ऑफिसर ऑफ डिफॉल्ट को सेक्शन 447 लगेगा फ्रॉड के लिए. Okay, now time of issue of certificate of security, that within how much time you can issue the certificate of security. This section of the act says that every company unless prohibited by any provision of law or any order of any court, मतलब कोर्ट या लॉ जब तक रोका ना हो तो हर कंपनी को must deliver the certificate of all security allotted, transfer or transmitted within a period of 2 months from the date of incorporation in case of subscriber to the मेमोरेंडम. सी अगर कोई कंपनी न्यू बनाए तो जो मेमोरेंडम के सब्सक्राइबर्स होते हैं उनको भी हम लोग कुछ शेयर अलॉट करते हैं, राइट. तो उस केस में विद इन अ पीरियड ऑफ 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन डेट के 2 महीने के अंदर आपको कर देना है, राइट. या विद इन अ पीरियड ऑफ 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट इन केस ऑफ एनी अलॉटमेंट ऑफ एनी ऑफ इट्स शेयर. जनरल कोई अलॉटमेंट है तो विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट यू हैव टू इशू द सर्टिफिकेट ऑफ शेयर्स. Within a period of 1 month from the date of receipt by the company of the instrument of transfer or as the case may be of intimation of transmission in case of transfer or transmission of security. अगर ट्रांसफर और ट्रांसमिशन का केस है तो विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द बाय द कंपनी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर. ट्रांसफर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, मीन्स एक डॉक्यूमेंट होता है, वो जब कंपनी को मिला है उसके 1 month के अंदर ही हैव टू इशू द शेयर सर्टिफिकेट इन द नेम ऑफ ट्रांसफरी. ओके, so this was the time of issue, and the last point is telling that within a period of 6 months from the date of allotment in case of any allotment or debenture. Debenture की बात हो ना तो within period of 6 months from the date of allotment you have to issue the certificate. However, where the securities are dealt within the depository, the company shall intimate the details of allotment of security to depository immediately on allotment of such security. अगर इलेक्ट्रॉनिक केस का बात है तो फिर तुरंत इंटीमेट कर दिया जाता है. ओके, इमीडिएटली ऑन अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी हम लोग डिपॉजिटरी को इंटीमेट कर देते हैं. वेयर एनी डिफॉल्ट इज मेड इन कंप्लाइंग विद द अबव प्रोविजन, ये जो जिस टाइम लिमिट के अंदर आपको शेयर सर्टिफिकेट इशू करना है इसके साथ आपने कुछ डिफॉल्ट किया तो कंपनी को फाइन लगेगा नॉट लेस देन 25,000 बट एक्सटेंड टू 5 lakh, एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी शैल बी पनिशेबल विद फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 10,000 बट विच मे एक्सटेंड टू 1 lakh. ओके, नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस ऑफ शेयर सर्टिफिकेट. शेयर सर्टिफिकेट का सिग्निफिकेंस क्या है, और यू कैन से दैट व्हाट्स द इंपॉर्टेंस. It says that certificate of shares is evidence to the effect that the allotee is holding a certain number of shares of the company showing their nominal and paid up value and distinctive number. शेयर सर्टिफिकेट होना एक एविडेंस है दैट अलॉटी के पास कुछ नंबर ऑफ शेयर्स है और उसमें नॉमिनल और पेड अप वैल्यू लिखे होते हैं. दिस सर्टिफिकेट इज प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ टाइटल टू द शेयर्स इन पोजीशन ऑफ शेयर होल्डर. मीन्स जिस शेयर होल्डर के पास ये है उनके पास उस शेयर का टाइटल है बस. मोreover, when the company issues a certificate, it holds that the fact contained therein are true. जब एक कंपनी सर्टिफिकेट इशू कर रही है तो इट मीन्स दैट जो भी फैक्ट उसमें लिखा हुआ है वो सही है. एनी पर्सन एक्टिंग ऑन द फेथ ऑफ शेयर सर्टिफिकेट ऑफ द कंपनी कैन कंपेल द कंपनी टू पे कॉम्पनसेशन फॉर एनी डैमेज कॉज्ड बाय रीजन ऑफ एनी मिस स्टेटमेंट इन शेयर सर्टिफिकेट एज द कंपनी इज बाउंड बाय एनी स्टेटमेंट मेड इन द सर्टिफिकेट. कहता है कि किसी कंपनी ने अगर शेयर सर्टिफिकेट इशू किया एंड सम पर्सन हैव एक्टेड बोनाफाइड जस्ट कीपिंग देयर ट्रस्ट ऑन दैट सर्टिफिकेट. ओके, तो उस सर्टिफिकेट के बेसिस पे कुछ काम करने पे अगर लॉस हुआ ना तो दैट कंपनी कैन डायरेक्टली सू टू द दैट पर्सन कैन डायरेक्टली सू टू द कंपनी बिकॉज कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंशनिंग द थिंग्स ओवर द शेयर सर्टिफिकेट, राइट. फिर कहता है शेयर सर्टिफिकेट इज द ओनली डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ टाइटल एंड दैट द शेयर सर्टिफिकेट इज अ डिक्लेरेशन बाय द कंपनी दैट द पर्सन इन हुज नेम द सर्टिफिकेट इशूड इज द शेयर होल्डर इन द कंपनी. ये जो शेयर सर्टिफिकेट है इसे हम लोग कह सकते हैं कि कंपनी इज गिविंग अ डिक्लेरेशन दैट जिस पर्सन का नाम लिखा हुआ है ना सर्टिफिकेट पे वो उस कंपनी का शेयर होल्डर है.
ओके, ऑल्सो द कंपनी कैन नॉट डिस्प्यूट द अमाउंट मेंशन ऑन द सर्टिफिकेट एज ऑलरेडी पेड। जो पेड अप आप लिखे हैं कि इतना पेड अप आ चुका है इस शेयर पे, तो फर्दर यू कांट से दैट you have not received that amount, okay, which is mentioned over the certificate as paid up. Damages against company and directors for wrong certificate. See, as already mentioned that अगर कोई person acting on the share certificate issued by company may recover compensation for the damage suffered by him. अभी मैंने बोला ना कि अगर किसी कंपनी ने सर्टिफिकेट इशू किया और उस सर्टिफिकेट के बेसिस पे समवन हैव एक्टेड, और उस एक्ट से अगर उस इंसान को कुछ लॉस होता है ना, तो दे कैन रिकवर द डैमेज फ्रॉम कंपनी. The measure of damage is the value of shares at the time of the refusal by the company to recognize him as a shareholder together with interest from that date. मतलब जो loss होगा वो तो होगा for the purpose of recognizing shareholder and interest also. Where director issue a certificate of title of shares which the company has no power to issue, they may be held personally liable to damage on an implied warranty of authority to any person who act on such certificate. This means कभी अगर ऐसा हो कि डायरेक्टर ने इशू कर दिया सर्टिफिकेट बट कंपनी को पावर नहीं था इशू करने का, तो दैट डायरेक्टर विल बी पर्सनली लायबल फॉर द damages in respect of a person who acted on that certificate. फिर split certificate. See, split certificate means a separate certificate claimed by shareholder for a portion of his holding. Okay, means split means क्या होता है, एक तरह से तोड़ना. Okay, तो अपने होल्डिंग का पोर्शन के लिए अगर कोई सर्टिफिकेट इशू हुआ हो, मतलब अगर मान लीजिए टोटल अपना 10,000 शेयर्स का होल्डिंग है, तो मेरा 5,000 के लिए जो सर्टिफिकेट है दैट इज कॉल्ड स्प्लिट सर्टिफिकेट. The advantage of split certificate are that the shareholder may benefit in case of transfer by way of sale or mortgage in small lot, and the right to multiply the certificate into as many shares held by the shareholder. Okay, मतलब आप अगर एक लॉट में ट्रांसफर करते हैं तो दैट वुड बी बेनिफिशियल. आपको एक सर्टिफिकेट देना होगा सिर्फ. Purpose and form of share certificate. With the help of share certificate, a member of company may deal with its shares in the market, whether it is one of sale, mortgage or pledge, by showing a good prima facie marketable title to the share. शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है? प्राइमा फेसी मार्केटेबल टाइटल टू द शेयर. तो आप उसके साथ क्या कर सकते हैं? यू कैन सेल दैट शेयर. आप मॉर्गेज कर सकते हो, प्लेज रख सकते हो बाय शोइंग दैट शेयर सर्टिफिकेट. और शेयर सर्टिफिकेट इज द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ टाइटल टू शेयर्स. बहुत बार बोला गया ये बात. प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ हिज टाइटल टू द शेयर. ऑब्वियसली आप अगर कुछ प्लेस करना चाहते हो तो फिर टाइटल से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स प्लेज ही वांट्स. ओके, तो फिर उस केस में आप यू कैन शो दैट शेयर सर्टिफिकेट. Section 46 for provided that where a share is held in depository form, the record of depository is the prima facie evidence of the interest of beneficial owner. अगर डीमैट फॉर्म में तो रिकॉर्ड ऑफ डिपॉजिटरी इज प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ बेनिफिशियल ओनर. So some important points to remember is every certificate of share or share shall be in form number SH1. The particular of every share certificate shall be entered forthwith in the register of renewed and डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट मेंटेन इन फॉर्म नंबर SH2. ओके, मतलब आप अगर जो डुप्लीकेट शेयर इशू कर रहे हैं, ये पर्टिकुलर ऑफ एवरी शेयर सर्टिफिकेट यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे शायद डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि जो आप रिन्यू करते हैं या फिर जो डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू करते हैं उसका पर्टिकुलर फॉर्म नंबर SH2 में आता है. द नेक्स्ट हेडिंग इज टॉकिंग अबाउट वेदर शेयर सर्टिफिकेट एंड ऑफिशियल पब्लिकेशन. मतलब शेयर सर्टिफिकेट देना एक ऑफिशियल पब्लिकेशन है क्या, जैसे हम लोग प्रोस्पेक्टस वगैरह को पब्लिश करते हैं. See, the question whether share certificate is an official publication within the meaning of section 12 was considered by Department of Company Affairs. Okay, and the department has clarified. ये circular के help से department ने clarify किया था as follows. Okay, see, it will be seen that in terms of section 82, the shares in a company are movable property transferable in the manner provided in the article. Shares जो होते हैं वो transferable होते हैं. Fine. कहता है section 84 provides that a certificate under a common seal of the company specifying any share held by any member shall be prima facie evidence of the title. शेयर सर्टिफिकेट टाइटल का एविडेंस है. द शेयर्स आर मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल इन द मैनर प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल एंड दैट शेयर सर्टिफिकेट आर सर्टिफिकेट ऑफ टाइटल. और वो मूवेबल प्रॉपर्टी बट आर नॉट पब्लिकेशन इन द नेचर ऑफ प्रोस्पेक्टस. मतलब शेयर सर्टिफिकेट का नेचर प्रोस्पेक्टस, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नोटिस या एडवर्टीजमेंट का नहीं है. इट इज जस्ट शोइंग मियरली अ टाइटल. ठीक है, टाइटल टू द शेयर्स इन द नेम ऑफ पर्सन हुज नेम इज एंटर्ड इन द सर्टिफिकेट. राइट. The conclusion reached therefore is that the share certificate is not an official publication. ध्यान रखना ये बात. Within the meaning of section 12 of the Companies Act 13. Further, a legal effect of share certificate. We have already stated that share certificate is prima facie evidence of title of the person. आप लोग को तो याद हो गया होगा ये बात कि share certificate prima facie evidence है to the title of person whose name is entered on it. It means that share certificate is a statement by the company that moment when it was issued, the person named in it was the legal owner of the shares. शेयर सर्टिफिकेट का मतलब कि कंपनी स्टेटमेंट दे रहा है कि जब मैंने इसको इशू किया ना, तो जिस इंसान का नाम लिखा हुआ है वो लीगल ऑनर है उस शेयर का, जो शेयर इस सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है.
of the share specified in it, and those shares were paid up to the extent stated. मतलब शेयर सर्टिफिकेट में ये भी लिखा होता है ना कि कितना रिसीव पेड अप है, तो वही बोल रहा है कि दो शेयर वर पेड अप टू द एक्सटेंट स्टेटेड, मतलब जितना स्टेट किया गया है. इट डज नॉट कंस्टिट्यूट टाइटल बट इट इज मेयरली एविडेंस ऑफ टाइटल, मतलब इट इज शोइंग एविडेंस ऑफ टाइटल दैट यस इट इज, इट शोज दैट जिस इंसान का नाम लिखा हुआ है उनके पास टाइटल है इस शेयर्स का. इट इज हाउएवर स्टेटमेंट ऑफ कंसिडरेबल इंपॉर्टेंस फॉर इट इज मेड विथ नॉलेज दैट द अदर पर्सन may act upon it in the belief that it is true and his fact bring to the operation the doctrine of estoppel. Okay, मतलब कि शेयर सर्टिफिकेट को कोई अनदर पर्सन बोनाफाइड सही कंसिडर कर सकता है. इट शुड नॉट बी लाइक आप जज करोगे शेयर सर्टिफिकेट की वो सही है या नहीं है. फाइन. फिर एज अ रिजल्ट ऑफ शेयर सर्टिफिकेट वंस इशूड बाय द कंपनी बाइंड्स इट इन टू वेज. एक बार एक कंपनी शेयर सर्टिफिकेट इशू करता है ना, तो कंपनी पे दो तरह का बाइंडिंग लगता है. दैट्स वाई इसका टॉपिक है लीगल इफेक्ट, कि शेयर सर्टिफिकेट इशू करने पे क्या क्या लीगल इफेक्ट होगा कंपनी पे. सी बाय एस्टॉपल एज टू टाइटल, बाय एस्टॉपल एज टू पेमेंट. मतलब दो बात का आपने एस्टॉपल लगा रहे हैं. एस्टॉपल मतलब कि आप खुद से ये लोगों को अज्यूम करवा रहे हैं कि आपने बोला है कि उस इंसान का टाइटल है, आपने बोला है कि उस इंसान ने इतना पैसा पे कर दिया है बाय द अमाउंट ऑफ पेड अप स्टेटेड. देखिए यहाँ पे हाँ इसको डिफाइन किया है एस्टॉपल एज टू टाइटल, मतलब शेयर सर्टिफिकेट वंस इशूड बाइंड द कंपनी इन टू वेज. पहला बात की इट इज अ डिक्लेरेशन बाय कंपनी टू द एंटायर वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड को बोल रहा है कंपनी की पर्सन जिसका नाम लिखा है ना सर्टिफिकेट में, जिनको हम दिए जा रहे हैं वो कंपनी का शेयर होल्डर है. इन अदर वर्ड कंपनी स्टॉप फ्रॉम डिनाइंग हिज टाइटल टू द शेयर. मतलब कंपनी एक बार इशू कर दिया तो वो मना नहीं कर सकता है कि वो शेयर उस इंसान का नहीं है. फिर एस्टॉपल एज टू पेमेंट की द सर्टिफिकेट स्टेट दैट ऑन ईच ऑफ शेयर फुल अमाउंट हैज बीन पेड. सेम थिंग विच आई एक्सप्लेन. जो पेड अप का अमाउंट अगर है तो स्टॉप अगेंस्ट द बोनाफाइड परचेज ऑफ द शेयर फ्रॉम दैट दे आर नॉट फुली पेड. ठीक है, बाद में कंपनी ये नहीं बोल सकता है कि वो फुली पेड नहीं है. इफ ए पर्सन नोज दैट स्टेटमेंट इन सर्टिफिकेट आर नॉट ट्रू ही कैन नॉट क्लेम एन स्टॉपल अगेंस्ट द कंपनी. मतलब ठीक है, आप सर्टिफिकेट पे रिलाई कर सकते हो, बट आपको अगर पता है कि सर्टिफिकेट पे कुछ गलत लिखा हुआ है, इन दैट केस यू कांट टेक बेनिफिट कि कंपनी ने इशू किया है तो वो सही इशू किया होगा. राइट, जो कि हम लोगों ने पढ़ा दैट कोई अगर बोनाफाइड उस पर एक्ट करे तो कंपनी से डैमेज रिकवर कर सकता है. बट बोनाफाइड एक्ट करे, उन्हें पता है ऑलरेडी कि देर आर समथिंग बैड इन द शेयर सर्टिफिकेट, एंड इफ इन दैट केस दे एक्ट ऑन द बेसिस ऑफ दैट शेयर सर्टिफिकेट, तो इट इज़ कम्प्लीटली नॉट अलाउड. डिस्पाइट एवरीथिंग अ सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड बाय समवन हु हैज अथॉरिटी. मतलब ऑब्वियसली जो शेयर सर्टिफिकेट को इशू करने के लिए भी अथॉरिटी होना चाहिए, तो वही इशू करे. फॉर एग्जाम्पल वेयर द सेक्रेटरी फोर्स द सिग्नेचर ऑफ टू डायरेक्टर्स इन द कंपनी. अगर ये जो सेक्रेटरी है इन्होंने दो डायरेक्टर का सिग्नेचर को फोर्स कर लिया, मतलब कॉपी कर लिया. द कंपनी हैड रिफ्यूज टू रजिस्टर द होल्डर ऑफ शेयर्स एज अ मेंबर. Further, a certificate is not evidence as to the equitable interest in shares. Also, where an individual is aware of the false statement in certificate, he will not be entitled to claim and stop. This means अगर कंपनी का सेक्रेटरी ने अगर सिग्नेचर को फॉर्ज किया होगा ना, तो कंपनी कैन डिनाई दैट हम इसे एज अ मेंबर एक्सेप्ट नहीं कर सकते बिकॉज कंपनी हैज़ नॉट अलॉटेड. राइट. फिर पर्सोनेशन ऑफ शेयर होल्डर. ये पर्सोनेशन मतलब क्या होता है? व्हेन यू ट्राइंग टू एक्ट एज सम अनदर पर्सन. ओके, आप अगर कोई इंसान नहीं हो बट यू आर ट्राइंग टू एक्ट लाइक देम, फ्रॉड करने के चक्कर में. ठीक है. कहता है वेयर एनी पर्सन डिसीटफुली मतलब धोखा देना. पर्सोनेट्स एज एन ओनर ऑफ एनी सिक्योरिटी मीन्स यू आर नॉट अ ओनर बट यू आर पर्सोनेटिंग योर सेल्फ एज अ ओनर. यू आर शोइंग दैट यू आर द ओनर or interest in a company or of any share, warrant or coupon issued in pursuance of this act and there obtains or attempt to obtain any such security. मतलब आप उसका ओनर बन के वो सिक्योरिटी लेना चाह रहे हो. और इंटरेस्ट इन एनी सच वारंट और कूपन और रिसीव्स और अटेम्प्ट टू रिसीव एनी मनी ड्यू टू एनी सच ओनर. मीन्स आप वो सिक्योरिटी का ओनर बन के उस ओनर को कुछ पैसे मिलने वाले थे. ओके, एंड यू आर शोइंग दैट यू आर द ओनर एंड यू आर रिसीविंग सम मनी ड्यू टू दैट. So you are punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 1 year but which may extend to 3 years and with fine which shall not be less than 1 lakh rupees but which may extend to 5 lakh. Correct. फर्दर ये पर्सनेट को डिफाइन किया जो मैंने बोला मीन्स टू प्रिटेंड टू बी समवन एल्स. ठीक है, आपको ये हो नहीं बट यू आर प्रिटेंडिंग टू बी स्पेशली फॉर फ्रॉडलेंट पर्पस. और मीन्स मैंने बोला था ना धोखा देने के लिए. सच ए कास्टिंग ए वोट इन अनदर्स पर्सन नेम, किसी और पर्सन के नाम पे वोट देना, या पर्सनेशन एंड इम्पर्सनेशन इम्प्लाई द सेम थिंग. मतलब to assume to be some another kind of person in order to defraud. Right. Okay, next is part C, issue of securities, but I am not proceeding with this and summing up this video as a part A and part B of this chapter, share and share capital. Okay, I'll record further parts and put the link of those videos in the description of this. I'll update in some time. Okay, so for now just see this part A and part B, and in case of any query just drop the thing in our WhatsApp group or you can DM me on LinkedIn also. Fine, thanks. Thank you.